हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद इन डिटेल. So whenever you talk about the biological classification, okay, before that, when you talk about the biology, okay, what is biology exactly? Let's talk about its nature and scope. Okay, first of all, that we have to cover this. So biology, we all know the life knowledge, right? It's a biology. It's a branch of science. So biology is what? A branch of science. Yes or no? Yes, it's a branch of science which deals with the study of living organisms. Living organisms study is what this branches deals with, right? And their life process and their life processes. So that is actually what a biology, right? But the term biology was first coined by the Lamarck and Treviranus. So biology के first term किसने दिया हमें? Lamarck ने, okay? Lamarck ने and Treviranus, okay, in 1802 million. Okay, that is the first. So, can we talk about who is the actual father of biology? Is father of biology is the Aristotle. हमारे एरिस्टल चाचा कौन है? Father of biology. It has two main branches of botany and zoology. So ये जो biology है, that is further divided into the botany, that is a plant study, and zoology, that is a animal study. Okay. So when you talk about the father father of botany is actually the Theophrastus. Theophrastus. Okay, and father of zoology is Aristotle. Okay, so this much we have to understand about the biology. So when you talk about, तो ये जो बॉटनी है, zoology है, इसके अंदर क्या है? क्लासिफिकेशन. देखो, क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर सुपरमार्केट में भी जा रहे हो तो देर आर मेनी सेक्शन, बहुत अलग अलग सेक्शंस है वहां पे. किसके लिए? सोप अलग रहेंगे, डिटर्जेंट्स अलग रहेंगे, फूड आइटम्स अलग रहेंगे, टॉयज अलग रहेंगे. दैट्स क्लासिफिकेशन. दिस इट्स गोइंग टू सेव योर टाइम, राइट? So classification is very, very important in this case. So when we are studying the classification of, when we actually study the classification of living organism, classification of living organism, what we are actually covering. So classification is what? Nothing but, classification is nothing but the arrangement. It's the arrangement of living organisms. It's what? Arrangement of living organisms. क्यों हमें इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना, अरेंजमेंट करना? तो स्टडी करना, राइट? अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, कॉमन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स. अकॉर्डिंग टू दैट, okay, and placing the group within the taxonomical hierarchy. So arrangement of living organisms according to their common characteristic and placing them into the group, placing them into group like taxonomical taxonomical hierarchy. Taxonomical hierarchy. Okay, we have to follow that. The branch of science which deals with the description, its nomenclature. So इसमें ही क्या है? Branch of science, branch which deals with the description, nomenclature. Okay, its nomenclature is description, then identification, their classification of organisms is called a taxonomy. इन सब को मिलजुल के क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी.
ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास क्लियर है. That's called taxonomy. So their taxonomy are described into the two, three parts. So when you talk about the taxonomy, what is the first point we have discussed? A numerical taxonomy. Numerical taxonomy. अभी यहाँ पे numerical taxonomy आपको क्या बताएगा? So let's talk about that in detail. It is based on all observable characteristics. Based on observable characteristics. That is the first point. Okay. So number and codes are assigned to the characters. So characters रहेंगे, जो characters रहेंगे organisms के, उसको एक number दिया जाएगा and एक unique code दिया जाएगा, right? So they are assigned to the, okay, and data is processed to the computer. और ये जो data है after giving the numbers is processed definitely in where, in computers, right? So that's called numerical taxonomy. उसके बाद that is the first one. उसके बाद आता है हमारा साइटो टैक्सोनॉमी. ये कौन सी चीज है? सो लेट्स स्टडी अबाउट इट डिटेल. So it is a taxonomy. In case of Cyto 1, it is a taxonomy, the detailed cytological information. Here what? A detailed cytological information is what is used for categorization in a cytology. The third one, that is chemotaxon. What is that? Chemotaxon. Chemotaxonomy. अब एक बात बोलो, ये नाम ही आपके लिए सफिशिएंट है. chemotaxonomy में क्या होगा? The chemical constituents are taken as a consideration. So ये जो chemical substances है और we can say constitutions है are the main thing, basis of classification. ये क्या है? Basis of classification है. Okay, that is a chemotaxonomy. So on the basis of the reference criteria, the classification of living organisms are in different types. अगर हमने बात की, अभी देखो हमने ये बात की, क्या बात की कि ऑन द डिस्क्रिप्शन ये टैक्सोनॉमी न्यूमेरिकल है, टैक्सोनॉमी क्या आपकी न्यूमेरिकल है, साइटोलॉजिकल है और आपकी केमोलॉजी. अगर हम बात करेंगे इन डिफरेंट वे, चलो अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, यहाँ पे लेट मी यूज ओके क्लासिफिकेशन ऑफ, डेफिनेटली किसकी बात करें हम? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें. तो ये जो है ना, अभी देखो यहाँ पे द फर्स्ट पॉइंट आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल, अभी आर्टिफिशियल में क्या है? और इसको कॉल्ड एज प्रायर क्लासिफिकेशन. इसको आल्सो कॉल्ड एज प्रायर क्लासिफिकेशन. ओके, आफ्टर आर्टिफिशियल नेचुरल इज कम इनटू द पिक्चर. नेचुरल को ही क्या बोलते हैं? फेनेटिक क्लासिफिकेशन. फेनेटिक. Okay, after natural or phonetic, we have a phylogenetic. वो phylogenetic. Phylogenetic को क्या बोलते हैं? Cladistic. Cladistic classification. So artificial, then आता है natural, then आता है आपका phylogenetic. तो ये classification of living organisms. Okay. Now what they are actually, so let's talk about in detail. So when you talk about the artificial, so artificial में ऐसा क्या है? Okay, artificial में ऐसा क्या है? So in this system of classification, one or very few characters are considered. One or few characters are considered. Okay, that is the artificial. एज अ की फीचर, ये जो करते हैं ना, ये किसके लिए यूज करते हैं? एज अ की फीचर. अगर भी की फीचर क्या है? की फीचर का मतलब है यस और नो. मतलब अगर आपको सोप को, अगर फॉर एग्जांपल सोप को आपको डिवाइड करना है, तो सोप एक होता है क्लोथिंग सोप, एक होता है बॉडी सोप. तो आपका ये कौन सा सोप है? ये आपका की फीचर है कि बॉडी के लिए यूज करेंगे कि किचन या फिर वॉशिंग के लिए यूज करेंगे, राइट? सो ये आपका की फीचर होगा कि आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो उसको. दैट इज कॉल्ड की. This classification system never throws light, but इसका एक drawback, they never throws light on a
Affinity is a relationship between the organisms. Okay, ये affinity और relationship वो नहीं बताता. Okay, with others. The second one that we're going to talk about is a natural. Natural को ही क्या बोलते हैं? Yes, phonetic classification. So phonetic classification क्या है? The classification system in which organisms are classified on the basis of their permanent vegetative character. तो यहाँ पे क्या यूज होता है? Permanent vegetative character यहाँ पे यूज होता है. Okay, in natural. So in this classification system, the grouping of heterogeneous group यहाँ पे क्या यूज होगा? Heterogeneous group होंगे, राइट? दैट इज अनरिलेटेड. वो क्या रहेंगे? अनरिलेटेड रहेंगे. ओके, ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अवॉइड. ये इसको क्या मोस्टली करते हैं? अवॉइड करते हैं. जो हेटेरोजेनस ग्रुप रहेंगे उसको अवॉइड करें. परमानेंट वेजिटेबल कैरेक्टर इज यूजफुल. देन द लास्ट वन दैट इज you have talked about, that is a phylogenetic classification. Phylogenetic classification और phylogenetic को ही क्या बोलते हैं? That is equal. So this classification is actually, or we can say it's maybe monophyletic. इसको क्या बोलते हैं? Monophyletic बोलते हैं. फिर क्यों बोलते हैं monophyletic? That is one ancestor. One ancestor. Ancestor. Spelling is okay. Ancestor. Okay. यहाँ पे C आना चाहिए. चलो C. Ancestor. Okay. So ये one ancestor, that is a monophyletic. Okay. वंशज कौन रहेंगे? एक ही रहेंगे. देन क्या हो सकते हैं? पॉलीफाइलेटिक भी हो सकते हैं. पॉलीफाइलेटिक भी हो सकते हैं. मोर देन डिराइव फ्रॉम टू एंसेस्टर. वी डिराइव फ्रॉम व्हाट? टू एंसेस्टर्स. ओके. एंड पैराफाइलेटिक. पैराफाइलेटिक भी है यहाँ पे. देखो पैराफाइलेटिक का मतलब क्या होगा यहाँ पे? The organism does not include all the descendants of the common ancestor. Or we can say no common ancestor. कैरेक्टर आंसर का कॉमन एंसेस्टर्स में नहीं पाया जाता. ओके, दैट इज पैरोजन. द मोस्ट एक्सेप्टेड. ये तो मोस्ट एक्सेप्टेड है क्या? ये तो जस्ट हमने क्लासिफिकेशन किया आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड पैरोजन. अभी इतना कंफ्यूजन हो गया कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था. तो मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सा है भाई यहाँ पे? सो मोस्ट एक्सेप्टेड इज the classification of living organisms was proposed by R.H. Whittaker. जो R.H. Whittaker है, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो मोस्ट एक्सेप्टेड. अभी जो कौन सा था? दे गिव्स द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. उस 5 किंगडम में क्या क्या प्रेजेंट था? मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, उसके बाद था फंजाई, फंगाई, उसके बाद था एनिमेलिया एंड प्लांटिक. ओके, ये था. उसके अलावा भी देयर आर सम क्लासिफिकेशन, लेकिन मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कौन सा था? आर.एच. विटेकर ने दिया था. मोरेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड प्लांटिवल. ओके, सो देयर आर अदर क्लासिफिकेशन सिस्टम भी था. तो जस्ट स्टडी करते हैं अदर क्लासिफिकेशन. अदर क्लासिफिकेशन में क्या था? टू किंगडम था. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग. टू किंगडम सिस्टम. टू किंगडम सिस्टम. ओके, तो ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने. कैरोलस लीनियस ने दिया था. अभी इसने क्या किया? ओनली एनिमेलिया एंड प्लांटे को कंसिडर किया. ओके, वो टू किंगडम. देन उसके मेरिट्स क्या थे? In this case, what are the merits? Photosynthetic organisms were included into plant and non-photosynthetic organisms were included into animal. तो animal में क्या था? Non photosynthetic था, and plant में क्या रहेगा? Photosynthetic रहेगा.
तो इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यही था कि फोटोसिंथेटिक को अलग करो, नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग करो। बट ऑब्वियसली इसमें तो बहुत सारे डीमेरिट्स देंगे, क्लासिफिकेशन कंप्लीट है ही नहीं यहाँ पे, राइट। सो सम ऑर्गन्स डू नॉट फॉल नेचुरली आइदर इनटू द प्लांट और एनिमल। तो जो कोई प्लांट और एनिमल है ही नहीं उसको क्लासिफिकेशन फिर कैसे करोगे, इट इज द प्रॉब्लम, राइट। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट। ओके, उसके बाद आया तो टू किंगडम, किसने दिया था, कैरलेस लीनियस दिया था। उसके बाद आया थ्री किंगडम। थोड़ा आगे करते हैं हम लोग। उसके बाद कौन आया पिक्चर में, थ्री किंगडम सिस्टम। ये किसने दिया, सो दिस इज गिवन बाय दी अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल ने इसको दिया। तो इसने क्या बोला, कौन से ग्रुप रहेंगे, प्रोटिस्टा रहेगा, एनिमेलिया रहेगा, एनिमेलिया रहेगा एंड प्लांटे रहेगा। तो उसने किसको ऐड किया, प्रोटिस्टा ग्रुप को ऐड किया, अर्नेस्ट हैकेल। तो they created a third kingdom which include unicellular, it's include what, unicellular and eukaryotic, eukaryotic। अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया था कि जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रोब्स है एंड सम मल्टीसेलुलर, उसको क्या किया, एक ग्रुप में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोटिस्टा। तो इसका मेरिट है, लेकिन इसका डीमेरिट भी तो है। डीमेरिट क्या होता है, अभी तक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, ये हमें पता है, लेकिन वन बाय वन स्टेप जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। क्या था, मोनेरास वेर नॉट प्लेस्ड करेक्ट। तो मोनेरास थे, दे नॉट प्लेस्ड करेक्टली इन थ्री किंगडम। Okay. After the three kingdom, there will be a rise of a four kingdom. ठीक है, फोर किंगडम इज गिवन बाय द पोपलैंड, पोपलैंड ने दिया। ठीक है, उसमें ऐड क्या किया, मोनेरा जो ऑलरेडी था, देन प्रोटिस्टा, सॉरी, मोनेरा ऐड किया, प्रोटिस्टा जो ऑलरेडी था, उसके बाद एनिमेलिया, एनिमेलिया और हमारा प्लांटेड ऑलरेडी था, right? तो मोनेरा ऐड कर दिया इसने। ठीक है, तो अभी उसका मेरिट क्या, मोनेरा वेर प्लेस्ड करेक्टली। तो ये क्या हो गया, प्लेस्ड करेक्टली हो गया। ठीक है, ये एडवांटेज हो गया, उसका मेरिट हो गया। बट डीमेरिट है, मोनेरस वेर नॉट सब डिवाइडेड। तो ये क्या हो गया, उसका डीमेरिट क्या हो गया, डीमेरिट है इसके पास, मोनेरास का सब डिविजन प्रॉपर नहीं किया था। मोनेरा का सब डिविजन क्या हो सकता है, आगे भी है ना, मोनेरास के अंदर भी क्या है, सब डिविजन है, जैसे कि आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, अच्छी बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ये प्रॉपर वहां पे मोनेरा में सब डिविजन नहीं किया गया। देन उसके बाद देखो फाइव किंगडम तो एक्सेप्टेड है, उसके बाद सिक्स किंगडम भी आया था। ओके, बट वो सिक्स किंगडम इट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो सिक्स किंगडम किसने दिया था, कार्ल वोल्स ने, कार्ल वोल्स ने किया था। कार्ल वोल्स ने क्या किया, देखो अभी मैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलियन, प्लांटे तो रहेंगे रहेंगे, राइट। उन्होंने क्या किया था पता है, दैट इज आर्चेबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को ऐड कर दिया था, इंस्टेड ऑफ मोनेरा, instead of Monera, simple one, they add Archaebacteria and Eubacteria. ओके, तो कितने हो गए ये, तीन, चार, पाँच, छः, राइट। ये सिक्स ऐड हो गए। अब इसमें मेरिट्स क्या थे कि आर्चेबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया वेर सेपरेटली प्लेस्ड, ये क्या था, सेपरेटली प्लेस्ड हो गए। बट स्टिल ये एक्सेप्टेड नहीं है। कौन सा एक्सेप्टेड हमारा, फाइव। सो लेट्स स्टडी प्रॉपरली। So, who is most accepted? The Irish Whittaker five kingdom. Monera, Protista, Fungi, Archaebacter and Plantae. टू किंगडम किसने दिया था, कैरलस लीनियस ने दिया था। टू किंगडम किसने दिया था, कैरलस लीनियस ने दिया था। देन उसका डीमेरिट क्या था, प्लांट्स एंड एनिमल क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं था। देन थ्री किंगडम किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। देन फोर किंगडम पोपलैंड ने दिया था एंड सिक्स किंगडम कार्ल वोल्स ने दिया था। सो दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू, my dear students. So let's talk about in detail now the further thing. So further thing क्या है हमारे पास? We are going to talk about the first, the kingdom Monera.
चलो क्या बात करेंगे हम, किंगडम मोनेरा की बात करेंगे। देखते हैं किंगडम मोनेरा। फर्स्ट किंगडम मोनेरा, लेट मी राइट प्रॉपर्ली। ओके, फर्स्ट किंगडम मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर क्या है, प्रोकैरियोटिक है, एंड क्या है, यूनिसेल्युलर है। दैट इज द फर्स्ट। ओके, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Okay. It includes all the prokaryotes such as bacteria, archaebacteria, mycoplasma, actinomycetes, cyanobacteria, and rickets that we going to study. So first उसमें आएगा बैक्टीरिया। कौन आएगा फर्स्ट उसमें, बैक्टीरिया आ जाएगा। तो फर्स्ट क्या है हमारा, बैक्टीरिया। तो इन केस ऑफ बैक्टीरिया दिस आर द यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर। क्या है, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, देखो मोनेरा में सब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ही रहेंगे, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा। ओके, दैट कंटेन्स द सेल वॉल, दैट कंटेन व्हाट, सेल वॉल। अब ये सेल वॉल किसका फीचर था, ओनली फीचर ऑफ प्लांट। बट किस में आ रहा है, मोनेरा में आ रहा है। ओके, किस में आ रहा है, बैक्टीरिया में आ रहा है। ठीक है, दिस आर अप्रोक्सीमेटली 4000 स्पीशीज। कितने हैं, 4000 स्पीशीज है। ये नंबर आपको याद है। ओके, with composition occurrence, with what, with, okay, now bacteria can be regarded as a both friend or the enemies on the basis of interaction with the human। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन इज 70 kg, हमें तो पता है। उसके अंदर मतलब 70 kg ह्यूमन के अंदर कितने सारे माइक्रोफ्लोस होते हैं, 2.5 kgs ऑफ बैक्टीरिया रहेंगे। Okay, you have to know this in the form of gut microflora, in the form of what we can say, gut। कौन से रहेंगे ये, gut microflora। ठीक है, देयर व्हाट, gut microfloras। सो गट माइक्रोफ्लोरा क्या करेंगे, सप्लीमेंट टू द प्रॉपर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिक फंक्शन। ये क्या करेंगे, डाइजेशन तो ये करेंगे, और सप्लीमेंटेशन का, सप्लीमेंट का काम करेंगे। Okay? So let's talk about bacteria in detail. Okay, so I want it to be in detail. So I'm going to take this picture. So when you talk about the bacteria, ठीक है, तो भी बैक्टीरिया है, आर्ची बैक्टीरिया। फर्स्ट क्या होगा आपका यहाँ पे, आर्ची बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ये आर्ची बैक्टीरिया आजकल प्रीमेटिव, इसको क्या बोलते हैं, प्रीमेटिव बैक्टीरिया। Okay, क्या है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। दे आर डिवाइडेड इनटू फर्स्ट मिथानोजेंस। मिथानोजेंस, चलो अभी नाम से ही बोलो क्या है, मिथानोजेंस रहेंगे, क्या रहेंगे, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया रहेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, चलो यहाँ पे डायरेक्टली मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, CH4। क्या करेंगे ये, CH4 प्रोड्यूसर। ठीक है, देन उसके बाद है हेलोफाइल्स। से हेलो, हेलोफाइल्स क्या रहेंगे, एक्सट्रीम कंडीशंस वाले रहेंगे, जो सॉल्टी एंड मरीन बैक्टीरिया बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्टी एंड मरीन बैक्टीरिया। ओके, हेलोफाइल्स के बाद हमारे कौन आते हैं पिक्चर में, हमारे थे थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो जो टेम्परेचर को क्या करेंगे, टेम्परेचर और वी कैन से एसिड्स को प्रोसेस करेंगे। सो थर्मो एसिडोफाइल्स आर व्हाट, प्रेजेंट इन एसिडिक सल्फर्स। एसिडिक किसमें रहेंगे, एसिडिक सल्फर में रहेंगे, सल्फर स्प्रिंग्स में रहेंगे। ओके, that's what thermos। Then bacteria are also divided into the second class that is called eubacteria। eubacteria, भाई eubacteria क्या है, प्रिमिटिव थोड़ी है, उससे एडवांस रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, थ्रू बैक्टीरिया। इसको क्या बोलेंगे, so who is a true bacteria, eubacteria। तो ये eubacteria are further divided into
ये जो फर्दर डिवीजन है इनका, लेट्स टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। वो किस में होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बिहेवियर फर्स्ट, on the basis of it. Let me write it or draw it properly. Okay. On the basis of staining, कौन सा कलर लेंगे? ठीक है, सो उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव रहेंगे, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन दी, लेट मी राइट डायरेक्टली, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस में ये क्या रहेंगे? देखो, दे आर डिवाइडेड इनटू दी कोकाई। कोकाई कोकाई कोकाई, तो कोकाई का मतलब क्या रहेगा? डेफिनेटली अराउंडेड। क्या है कोकाई का मतलब? क्या है? राउंडेड। तो ये कैसे रहेंगे? राउंड बैक्टीरियाज रहेंगे। ओके, दे आर व्हाट? नॉन मोटाइल। आफ्टर कोकाई वी हैव वो बैसिलाई, वी हैव वो बैसिलाई। बैसिलाई मींस व्हाट? कैप्सूल शेप रहेंगे। क्या रहेंगे? कैप्सूल शेप। तो ये कैप्सूल शेप रह सकते हैं, ठीक है, दे आर कैप्सूल शेप। देन वी हैव अ स्पिरिलियम। स्पिरिलियम, स्पिरिलियम क्या है? स्पाइरल। क्या है ये? स्पाइरल इन नेचर। स्पाइरल कैसे रहेंगे? दे आर इनटू व्हाट? स्पाइरल इन नेचर। ओके, एंड वी हैव अ विब्रियो। व्हाट? विब्रियो। विब्रियो लाइक इज कॉमा शेप। ओके, कॉमा शेप। ये जो है, ये जो पाए जाते हैं, दे आर मोटाइल। ओके, दे आर मोटाइल। नाउ हमने देखा था, हम क्या पढ़ रहे हैं? यू बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस, अभी हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस में देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आए। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक। फर्स्ट क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक होंगे, जो क्या करेंगे? फोटोसिंथेटिक और पर्पल सल्फोबैक्टर। इसमें इसमें क्या रहेगा? फोटो सिंथेटिक कुछ बैक्टीरिया रहेंगे, और कौन रहेगा? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। और ये जो ऑटोट्रॉफिक है, इसमें ऑब्वियसली क्या रहेगा? यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक। हेटेरो, हेटेरो क्या रहेंगे? ये खुद का खाना खुद नहीं बनाते, हेटेरोट्रॉपिक रहेंगे। अब ये हेटेरोट्रॉपिक कैसे रहेंगे? देखो यहाँ पे, फर्स्ट सैप्रोफाइलेटिक, सैप्रोफाइलेटिक रहेंगे। देन क्या रहेंगे? सिम्बायोटिक रहेंगे, एंड क्या रहेंगे? पैरासिटिक। पैरासिटिक। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। चलो हैव अ क्लोज लुक हियर, यहाँ पे क्लोज टू। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। सो एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं विद लेजर। बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू व्हाट? आर्की बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव बैक्टीरिया, प्राइमरी वन। देन यू बैक्टीरिया, थ्रू बैक्टीरिया। जो एसिडिक है वो कैसे है? मेथानोजेंस है, हेलोफाइल्स है, एंड थर्मोएसिडिफाइल्स है। यू बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव है। ऑन द स्ट्रक्चर दे आर कोकाई, बैसिलस, बेरिलियम एंड विब्रो। जो मोटाइल है वो कौन है? ये तीनों मोटाइल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन दे आर ऑटोट्रॉप्स, वहाँ पे फोटोसिंथेटिक आएंगे, पर्पल सल्फर आएंगे। हेटेरोट्रॉपिक में क्या है? सैप्रो, सिम्बायोटिक एंड मोनोसिटिक। तो हमने कर दिया क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। नाउ वी आर मूविंग टू द बैक्टीरिया के अंदर ही हम बात करेंगे आर्ची बैक्टीरिया के बारे में। चलो अभी हम बात करेंगे बैक्टीरिया के अंदर वाले पार्ट, तो दैट इज फर्स्ट आर्ची बैक्टीरिया। ओके, आई विल ट्राई कि वन पेज पे आपका वन क्लासिफिकेशन। सो ये क्या है? दिस आर द ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव। ये क्या है? पे हमने ये पढ़ा था ना, ये क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव।
मोस्ट प्रिमिटिव है। ओके, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में मोस्ट प्रिमिटिव कौन है? आपकी बैक्टीरिया। दे हैव अ सेल वॉल, इनके पास क्या है? दे हैव अ सेल वॉल, इनका फीचर है जो सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा, लेकिन इनके पास क्या? सेल। ओके, मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड नॉन सेलुलेक्स। इसकी जो सेल वॉल बनी है ये किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है एंड पॉलीसैकेराइड से बनी है। किससे बनी है? पॉलीसैकेराइड से बनी है। ओके, बहुत क्या बोलते हैं इसको, बहुत हेवी वाली है। द प्रेजेंस ऑफ 16 सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मेक्स द यूनिक एंड हेल्प्स द प्लेटिंग। तो इसके अंदर क्या है? 16 सार आरएनएस। तो ये जो आरएनएस है इसको यूनिक बनाती है, helps in placing in a separate domain called archaea। archaea। तो ये जो 16 एसआर सिंगल स्ट्रेट और एसआर आरएनए है, इसको इसके वजह से इसको क्या बोलते हैं? आर्चिया। बिटवीन बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट, ये किसके है? जो आर्चिया ग्रुप है ना, ये बिटवीन बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट के बीच में। तो ये 16 आरएनए का पॉइंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ आर्किबैक्टीरिया कैन लिव अंडर द एक्सट्रीम हॉस्टाइल कंडीशंस। ये जो है ना, एक्सट्रीम बैक्टीरिया ग्रुपिंग, एक्सट्रीम हॉस्टाइल कंडीशंस में पाए जाएंगे, जैसे कि सॉल्टी हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, हाई एसिडिटी हो गया। राइट, हमने किया है इसका क्लासिफिकेशन। मिथेनोजेंस है, क्लासिफिकेशन किया ना मेरे प्यारे बच्चे, देखो यहाँ पे ही हमने किया। कौन से आते हैं यहाँ पे? मिथेनोजेंस आएंगे, मिथेनोजेंस आएंगे, एलोफाइल्स आएंगे एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। राइट, हमने यहीं पे इसका कर दिया है। ठीक है, so let's talk about that in detail. Okay, now moving to the same thing. They are found in salt pans, salt marshes, hot surface stream because they are halophytes. They are also known as a living fossil. अच्छा, बैक्टीरिया को ही क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। ओके, बिकॉज दे प्रेजेंट इन द अर्लीस्ट फॉर्म द लाइफ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक ग्रुप बोलते हैं। राइट, ओके। आर्चाबैक्टीरिया कैन यूज फॉर, अभी इसका यूज क्या है? इनका यूज क्या है? सो लेट्स टॉक अबाउट सी फर्स्ट, experimentation for absorption of solar radiation। experiment of absorption of solar radiation इसमें यूज होगा। सेकेंड, प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस, प्रोडक्शन ऑफ मिथेनोजेंस यूज होते हैं ना, ये सब ना, प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस। ठीक है, गोबर गैस में फ्रॉम द डंग एंड सोच। थर्ड, fermentation of cellulose in ruminants। cellulose fermentation, cellulose fermentation किसमें होगा? ruminants। ठीक है, ये यूज है आर्किबैक्टीरिया। ओके, आफ्टर आर्किबैक्टीरिया we are going to talk about the second one। we are going to talk about the second one, that is eubacteria, through bacteria, right? Eubacteria, through bacteria। so let's talk about that in detail। eubacteria are also called as a true bacteria। ठीक है, ये भी अच्छा बैक्टीरिया है ये, which lacks the nucleus, के पास नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा? न्यूक्लियस is not there। and और क्या है? मेम्ब्रेन भी नहीं रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। कौन से नहीं है यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के पास नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इसके पास नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया आर यूजुअली डिवाइडेड टू द फाइव फाइलम। ये यूबैक्टीरिया ना फाइव फाइलम में डिवाइडेड, जैसे कि स्पाइरोचिट्स। ओके, ओके, लेट मी राइट दिस, दैट इज डिवाइडेड इनटू spirochetes। okay, then chlamydias, chlamydias, then gram positive bacteria,
gram positive bacteria में also classification, and cyanobacteria and protobacteria. Okay, so it's divided into these five files. Okay, so when you want to talk about this, we have a very what we can say, the diagram over here. So let me take this page and let's draw the diagram that will represent the. Okay, so you also make sure you also drawing the diagrams. Okay, हमेशा क्या होता है ना, सिर्फ हम नोट्स देखते रहेंगे ना तो कुछ नहीं, दिमाग क्या करता है, जो इम्पोर्टेंट उसको छपवा देता है, राइट। लेकिन अगर आप लिखोगे साथ साथ में, ड्रॉ करोगे साथ साथ में, तो ज्यादा अच्छे से याद रहता है, नहीं याद। ठीक है, ये कैप्सूलर स्ट्रक्चर बनाया हमने। ठीक है, इसके लिए बड़े वाले फ्लैजिला रहेंगे। चल, बड़े वाले फ्लैजिला को हम थोड़ा इजी वे में दिखाते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे क्या रहेंगे, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स। Talk about that in detail, and definitely जो छोटे छोटे हैं हम लोग वो देखें। So first of all, the first thing that is found in a capsule. ठीक है, फर्स्ट क्या है, कैप्सूल। इट इज मेड अप ऑफ द जिलेटिनस पॉलीसैकेराइड। ये क्या है, जिलेटिनियस जिलेटिनियस पॉलीसैकेराइड से बना हुआ है उसका कैप्सूल। इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम पैथोजेंस एंड डेसिकेशन। इट हेल्प्स इन अडेरेंस टू एनी सर्फेस। कैप्सूल क्या होती है, हेल्प्स इन अडेरेंस, हेल्प्स इन अडेरेंस में यूज होगा एंड प्रोटेक्शन में यूज होगा। ठीक है, देन उसके बीच में जो है क्या आएगा, साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है, डेफिनेटली इट कंटेन्स 80% ऑफ वाटर। 80% ऑफ क्या इसके अंदर, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। देन इसके पास ना छोटे 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 क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स। अभी राइबोसोम्स का काम क्या है, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन कौन से होते, 70S वाले होते। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ आर के पास क्या रहेगा, आर में रहेगा। एंड प्रोटीन्स। देन बात आती है बीच वाले की, जो मैंने ड्रॉ नहीं किया, बट आई एम ड्रॉइंग राइट नाउ। ये इसका क्या है, सेल वॉल। Okay, what is the function of cell wall? Protection. It's a rigid due to the presence of murine. सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, म्यूरिन प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, म्यूरिन। ओके, सेल वॉल कंटेन्स दी म्यूरिन along with Mg plus ions, okay, which bind to टिकॉनिक एसिड्स, bind to टिकॉनिक एसिड। कौन से एसिड से, टिकॉनिक एसिड से बाइंड करते हैं। ये दिस म्यूरिन, okay, this first one, this second one, they bind to टिकॉनिक एसिड, this bringing protection to the bacteria from the thermal injury। तो म्यूरिन जो है वो ये जो है थर्मल प्रोटेक्शन, थर्मल इंजरी से प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, ये हमने सीखा। देन इसके पास और एक चीज रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मीड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मीड, स्मॉल रहेगा, सर्कुलर रहेगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग रहेगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हैविंग द फ्यूजन। तो क्या रहेगा, दिस इज स्मॉल, circular and self replicating extra chromosomal DNA, extra
क्रोमोसोमल डीएनए है। ओके, देन ये जो छोटे छोटे, ओके उससे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे फ्लैजेलम, ये जो बड़े हैं, दिस वन एंड दिस वन आर कॉल्ड एज फ्लैजेलम। इसका, you know what is the function of flagellum? Definitely you know that. What is that? Filamentous hook है और basal body के attach है। its function and contains flagellin। इसके पास क्या होता है? फ्लैजेलिन होता है। फ्लैजेलिन जो प्रोटीन, ऑब्वियसली इसका फंक्शन क्या है? लोकोमोशन में, राइट? देन उसके बाद जो फ्लैजेलम होता है उसके अंदर क्या रहता है? फ्लैजेलिन होता है, प्रोटीन। एंड ये जो छोटे 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 ऐसे पार्ट दिख रहे हैं, that is considered as the fimbriae, hair-like substance called fimbriae. This fimbriae, what is the function of this fimbriae? These are a short filamentous structure composed of the protein. इसके अंदर कौन सा प्रोटीन रहेगा? पेलिन प्रोटीन रहेगा, ठीक है? These are eventually distributed. Can you see that eventually distributed है? Okay. Use for attachment. ये use होते हैं attachment के लिए, और ये use होते हैं मोटाई के लिए, ठीक है? तो fimbriae, आफ्टर फिम्ब्रिए एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा इसके अंदर, ओके, उसको बोलते हैं मेसोसोम। क्या है? मेसोसोम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेसोसोम? इट्स अ कॉम्प्लेक्स लोकलाइज्ड इनफोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। ये जो क्या है? इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है? विच एक्ट लाइक अ रिस्पिरेटरी ऑर्गन। ये क्या करेगा? रिस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह का, यूज्ड इन रेस्पिरेशन। सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन इज और मेसोसोम्स इन बैक्टीरिया। Then we have a plasma membrane। ये छोटी सी एकदम एकदम थीन जो लेयर है बिफोर दी आफ्टर दी साइटोप्लाज्म, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर सिमिलर टू यूकारियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It also the site of some respiratory, site of respiratory एंजाइम, ठीक है? तो हमने कर दिया ये बैक्टीरिया। ओके, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। क्या ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया? ठीक है, दैट इज डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ओके, ये थोड़ी जगह लिख लेते हैं, बहुत सारी जगह। ओके, तो हम बात करेंगे न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है? In case of this, what is nutrition? So the process of acquiring energy and nutrients is for the nutrition, right? Definitely सबको लगनी। On the basis of mode of nutrition, bacteria are two types, autotrophic and heterotrophic। ये तो पता है हमें, सिंपल सा फंडा है। ऑटोट्रॉप्स रहेंगे, क्या रहेंगे? हेटरोट्रॉप्स रहेंगे। On the basis of mode of nutrition, mode of nutrition, okay? So about 1% bacteria show the autotroph। autotrophs कितने रहेंगे? Only 1% रहेंगे। Please try to understand, only कितने? 1% रहेंगे, ठीक है? कितने? 1% bacteria show autotrophic, अदर जो रिमेनिंग है कौन है? हेटरोट्रोपिक हैबिटेट। So chemosynthetic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use to release the energy for their ATP production। जो chemosynthetic bacteria कौन से रहता है? chemosynthetic बैक्टीरिया जो रहेंगे, के केमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया रहेंगे, वो क्या करते हैं? यूज द वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भाई? जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स के बाद क्या यूज करेंगे? नाइट्राइट्स,
and ammonia. Okay, used to release what? Use the energy. जो कौन है? Chemosynthetic bacteria. Okay, autotrophic जो होते हैं, those who are autotrophic in nature, those who are autotrophic in nature जो रहते हैं ना, that they are photosynthetic. They all are photosynthetic. जो autotrophic रहेंगे क्या रहेंगे? Ultimately all are photosynthetic. Bacteria and heterophilic bacteria with their related details we are going to study about. Okay, so some photosynthetic bacteria. First हम करेंगे photosynthetic bacteria के बारे में. So let's talk about the group habits, cell wall, and representative, or we can say examples. The first one is proglobacteria. Proglobacteria. नाम से देखो पता चल रहा है. Lives in the tissues of marine invertebrates. हाँ यूज होगा marine tissues of marine invertebrates. सेल वॉल क्या रहेगी? ग्राम नेगेटिव. नेगेटिव एग्जांपल्स क्या रहेंगे इसका? प्रोक्लोरॉन. प्रोक्लोरॉन. ओके, देन पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया. पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया ये कहाँ पाए जाएंगे? दे आर मोस्टली और जनरली एनारोबिक. क्या ये एनारोबिक है? एनारोबिक है. एनारोबिक. स्पेलिंग मिस्टेक हो गया. रुको मेरे पास जो इसको मुझे कंप्लीट कर दो. एनारोबिक है. ठीक है. एंड रिसाइड ऑन द सेडिमेंट्स ऑफ लैक्स एंड sites sediments of lake and ponds में पाए गए. They are also gram negative. एग्जाम्पल क्या है इसका? Rhodospirium, Rhodospirium and Chlorobium. Chlorobium. ठीक है. Now that we just have talk about the photosynthetic bacteria. अभी बात करेंगे some heterotrophic bacteria के बारे में. Second is, okay, let's talk about the heterotrophic bacteria. ठीक है. So let's start with this. Heterotrophic bacteria. जो first है that's called spirochetes. First spirochetes. ये क्या है? मोस्टली दे फाउंड हैबिटेट इन what? Aquatic. कौन है ये? Aquatic. Parasites of animals. Parasites of जगाएंगे कुछ types of animals. Okay, they are सेल वॉल जो रहेंगे उनसे क्या रहेंगे? ग्राम नेगेटिव रहेंगे. अभी तक ग्राम नेगेटिव है. ठीक है. स्पाइरोचीटे एंड द ट्रिप्नोमा. एग्जांपल इज स्पाइरोचीटे. चीटे CH, let me write it properly. CH उसके बाद क्या है? AET and ट्रेपोडेमा. ओके, इसके बाद सेकंड एरोबिक रॉड्स एंड पोपल. एरोबिक रॉड्स एंड पोपल ये कहाँ जाएंगे? दे आर फाउंड इन सॉइल. aquatic also they found. Parasites of animal. Parasite of animal as well as plant.
जो स्पायरोचिट्स है ओनली एनिमल्स में पाया, ओनली एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है, और ये दोनों में पाया जाता है। ग्राम क्या है ये? नेगेटिव। Pseudomonas is the example. Pseudomonas is the example. Neisseria is the example. Nitrobacter, Azobacter, and Agrobacterium is the example. Then we have a second or third, what we can say, facultative anaerobes. Facultative anaerobes. ये क्या है? Facultative anaerobic rods. ये क्या है? एंडरोबैक्टीरिया। क्या है ये? बैक्टीरिया है। ये क्या है? मोस्टली दे फाउंड इन सॉइल, प्लांट्स, एनिमल। सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल कट में पाए जाते हैं। दे आर ग्राम नेगेटिव। साल्मोनेला एग्जांपल क्या है इसका? साल्मोनेला तो सब टाइफाइड करेगा, राइट? शिगेला, शिगेला इज एग्जांपल। देन प्रोटियस इज एग्जांपल। देन ई कोलाई और एस्केरॉइड, एस्केरॉइड। देन फोटोबैक्टीरिया। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स। आफ्टर दैट द लास्ट वन इज, नहीं लास्ट वन नहीं, बहुत सारे, बट let's talk about this fourth one, that is myxobacteria. Myxobacteria. Myxobacteria, they are found in decaying plants and animals. They are found inhabitants of decaying plant and animal. Okay, matter, matter animal का जो decaying matter है इसमें वो पाए जाएंगे। Bark of living trees, they found on what? Bark of living trees में पाए जाएंगे। They are also what? Gram negative. An example is Myxococcus and Chondromyces. Chondromyces and Myxococcus are the example of this. Okay. Then Mycobacteria के बाद आती है Mycoplasma. They are found in the parasites of plants and animals. Parasites of plant and animal. Okay. The cell wall is absent. यहाँ पे देखो माइकोप्लाज्मा में दे आर कॉल्ड जोकर्स, क्योंकि सेल वॉल क्या है इसका? एब्सेंट है। जोकर्स ऑफ बैक्टीरिया और जोकर्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, दे आर कॉल्ड अ माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा ऐसा एग्जांपल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, आफ्टर माइकोप्लाज्मा we have a gram positive cocci, then endospermic cocci, non-proliferating rods and chemotrophs. तो यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है सिक्स्थ वाला, दैट इज केमोटोट्रॉप्स। ठीक है, केमोटोट्रॉप्स में क्या है? सॉइल एक्वाटिक हैबिटेट, सॉइल एंड एक्वाटिक। ग्राम, इसका देखो, इसका ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, केमोटोट्रॉप। Halothelypus or Pseudothelipus, Acidobacillus, Biobacillus, and Allobacillus are the examples. Okay, that we have talked about in detail. Okay, so now let's talk about the respiration. Respiration in bacteria. चलो अभी इसमें क्या है? Respiration occurs in the plasma membrane of bacteria. Respiration किस में होगा?
प्लाज्मा, रेस्पिरेशन किसमें होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू, इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो ब्रोकन डाउन किसमें हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Okay, let me write carbon dioxide as CO2. Why should I write both names? CO2 plus water. So glucose is breaking down, breaks into CO2 and H2. Okay, so simple. Okay, using what? Using an aerobic cellular respiration. You know, aerobic cellular respiration use होगा यहाँ पे process. And other molecules such as the nitrates in an anaerobic. Anaerobic में क्या हो यूज होगा? anaerobic में यूज होगा नाइट्रेट्स। NO3 जो रहेंगे ना, ये यूज होगा नाइट्रेट्स anaerobics में। ओके, anaerobic सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों। ठीक है, एनारोबिक में NO3 को ग्लूकोज में NO3 को ब्रेक डाउन करेंगे, एरोबिक में किसको ब्रेक डाउन करेंगे? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, now reproduction in bacteria. Let's talk about the reproduction in bacteria. Okay. So reproduction, bacteria reproduce asexually and sexually. ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली भी प्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल मेथड्स में जो है असेक्सुअल बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस है फॉलोइंग मेथड्स। कौन से? फर्स्ट आएगा आपका फिजन। फर्स्ट क्या आएगा आपका? फिजन। फिजन बैक्टीरिया डिवाइड बोथ लैटरली एंड लॉन्जिट्यूडली। तो एक बैक्टीरिया सेल रहेगा, लैटरली भी होगा और लॉन्जिट्यूडली भी होगा, लैटरली एज वेल एज लॉन्जिट्यूडाइनल, तो फिजन बोलेंगे। आफ्टर दैट वी हैव बडिंग, इसमें बोलते हैं राइट। तो एक बैक्टीरियल सेल होगी तो उसपे एक छोटा सा बर्ड आएगा, दैट्स कॉल्ड अ बडिंग। और वेजिटेटिव आउटग्रोथ, इसको क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव आउटग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, और ये आगे जाके ब्रेक होके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। बडिंग के बाद आएगा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में नॉन मोटाइल स्पोर्स क्या प्रोड्यूस होगा? नॉन मोटाइल स्पोर्स। ओके, लाइक कॉनिडिया, कॉनिडिया एंड एंडोस्पोर, ये प्रोड्यूस होंगे। ये फॉर्म यार, इसको थोड़ा ट्रेड में हम लोग स्पोर फॉर्मेशन, कॉनिडिया, गुड़िया एंड देन एंडोस्पोर्स। ओके, दिस आर ऑल असेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होगा? सेक्सुअल में अगर बात करेंगे, सेक्सुअली जो होगा वो होगा फर्स्ट, although sexes are not differentiated in bacteria, some methods of a genetic recombination are categorized under the sexual. ये देखो, sexes are not differentiated, sexes are not differentiated properly to the bacteria, but on the basis of what? On the basis of genetic recombination. क्या होगा? Write it below. On the basis of genetic recombination. ठीक है, on the basis of recombination नहीं करेंगे। First is transformation. First is for transformation. फर्स्ट क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। जो ग्रिफ थे इन 1998 में, जो ग्रिफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ना ये डिस्कवर किया था, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन ऑफ द बैक्टीरिया इज ट्रांसफर टू अदर।
थ्रू अ कॉन्जुगेशन ट्यूब। उन्होंने क्या बोला था? जेनेटिक मटेरियल of one bacteria is transferred to first, second bacteria by conjugation tube. Conjugation tube से क्या होगा? ट्रांसफर होगा genetic material. Okay, that's for transformation. Then we have a conjugation. Conjugation method. Lederberg and Tatum. Transfer of genetic material occurs through the sex pillar. Transfer through sex pillar. Okay, ये conjugation में. And then we have a ट्रांसडक्शन। क्या है इसके पास? ट्रांसडक्शन। देखो सेक्स पिला किस में आएगी? कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन टिप किस में आएगी? ट्रांसफॉर्मेशन में आएगी। ओके, और ट्रांसडक्शन में क्या आएगा? चलो देखते हैं। ट्रांसडक्शन में क्या है? डक्शन, व्हाट्स दैट? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स बाय बैक्टीरियोफेज। क्या होगा? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज पता है क्या है? कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा? कैप्सुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में पाया होगा। तो ये जो भी होगा, ये अपनी जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के सेल में जाए, बहुत सारे फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स विल बी देयर। दैट्स फॉर ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या देखा? कॉन्जुगेशन ट्यूब को देखा। कॉन्जुगेशन में क्या देखा? सेक्स पिलाई को, राइट। एंड ट्रांसडक्शन में क्या लिखा? बैक्टीरियोफेज को देखा। तो सेक्स पिलाई कॉन्जुगेशन, conjugation tube transformation, ट्रांसडक्शन बैक्टीरियोफेज, ये बता होना चाहिए। ठीक है, चलो ना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया पढ़ें। क्या पढ़ेंगे अभी? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसकी? बैक्टीरिया की। चलो लेट्स स्टडी अबाउट दैट। Some bacteria are useful in producing various useful substances like curd, cheese, right? Curd, cheese, domestic, right? Antibiotics में यूज होगा, ये सब। एंटीबायोटिक सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिकल इसमें। विनेगर प्रोडक्शन के लिए यूज होगा। ओके, व्हाइल अदर बैक्टीरिया कॉजेज सेवरल क्रॉनिक डिसीजेस, तो ये यूजफुल है। लेकिन बैक्टीरिया हार्मफुल भी तो है, राइट? दे कॉजेज अ क्रॉनिक डिसीजेस। ठीक है, इन ह्यूमन, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। लेट्स टॉक अबाउट नाउ monorads, which are other, okay, monorads, which are others। ठीक है, फर्स्ट इज माइक्रोप्लाज्मा। फर्स्ट इज व्हाट? माइक्रोप्लाज्मा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा क्या? इट इज डिस्कवर्ड बाय द नोकार्ड एंड रॉक्स। नोकार्ड एंड रॉक्स ने डिस्कवर किया था 1898 में इसको। ठीक है, दिस आर सेल वॉल लेस। इसमें क्या होगा? लेस सेल वॉल। ओके, देखो ना कितना मीनिंग चेंज होता है। लेस सेल वॉल मतलब सेल वॉल कम है। मुझे क्या लिखना था? सेल वॉल है ही नहीं, राइट? तो देखो हम जब भी लिखते हैं थोड़ा ध्यान दो। सेल वॉल लेस है ही नहीं सेल वॉल इसके अंदर, राइट? एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल एंड दिस प्लीमॉर्फिक नेचर। इसका नेचर कैसा है? प्लीमॉर्फिक नेचर है इसका। तो इसको क्या बोलेंगे अगर ये ऐसे कर रहा है? तो दे आर कॉल्ड chokers of living world। They are called chokers of living world बोलेंगे। living world बोलेंगे, chokers of living world बोलेंगे। The microplasma are also known as a pleuro pneumonia like organism। इसको क्या बोलेंगे? pleuro pneumonia like organisms।
इसको ये क्या बोलते हैं? PPLO, प्लूरो न्यूमेनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। दिस आर द स्मॉलेस्ट लिविंग्स। ये क्या है? ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट। देखो, एक तो जोकर्स भी है और क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कितनी स्मॉल है ये? 0.1 माइक्रो, small, right? They can survive without oxygen. They can survive without oxygen. They can survive without oxygen. ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव करते हैं। They can survive without oxygen and are typically about this we have got, right? थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं माइक्रोप्लाज्मा का, या फिर थोड़ा सा आइडिया है जो एग्जैक्टली ये है क्या। सो टॉक अबाउट दैट। ठीक है, तो सेल वॉल क्या रहती है इसके अंदर, एक्सप्लेन। इसके अंदर सॉल्युबल आयरन, ये जो उसका ये रहेगा। लेट मी ड्रॉ अप फर्स्ट एंड आई विल गिव द नेमिंग प्रॉपर्ली, इट्स बेटर फॉर यू एज वेल। Structure of microplasma, let's give a naming. There's three layers. Okay, can you see that? One, two, and this three layers. Okay, they are made up of the lipoprotein membrane. ये जो three layers है, they are made up of the lipoprotein membrane. ठीक है, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से बने। देन जो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दे आर कॉल्ड राइबोसोम्स। क्या है ये? राइबोसोम्स है। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, डीएनए, एंड दिस आर सॉल्युबल आरएनए। सॉल्युबल आरएनए। ठीक है, ये माइक्रोब्यूल्स, उसके क्या बोलते हैं? चौकस ऑफ लिविंग वर्ल्ड। चलो, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, थोड़ा सा इसको, now actinomycetes, we are going to talk about the actinomycetes। ठीक है, अभी एक्टिनोमाइसिट्स है क्या? द मेम्ब्रेन ऑफ अ हेट्रोजीनियस ग्रुप, ये क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ हेटेरोजीनियस ग्रुप। ठीक है, ऑफ ग्राम पॉजिटिव, ऑफ व्हाट? ग्राम पॉजिटिव आर जनरली एनारोबिक बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? जनरली एनारोबिक होते हैं। जनरली क्या होते हैं? एनारोबिक, एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, फॉर अ फिलामेंटस एंड ब्रांचिंग ग्रोथ पैटर्न। क्या शो करेंगे? फिलामेंटस एंड ब्रांचिंग शो करेंगे। तो ग्रोथ पैटर्न क्या रहेगा? फिलामेंटस ग्रोथ पैटर्न। ठीक है, so it is result in the most forms in an extensive colony or mycelium। ग्रोथ कैसे रहेगी? एक्सटेंसिव रहेगी, एक्सटेंसिव रहेगी, बट कैसे रहेगी? कॉलोनीज में रहेगी। उस कॉलोनी को क्या बोलेंगे? कॉलोनी को हम बोलेंगे माइसेलियम। क्या बोलेंगे? माइसेलियम। तो कॉलोनी को क्या बोलेंगे? माइसेलियम। ठीक है, द मॉर्फोलॉजिकली दे आर रिजेंबल द फंजाई। ये जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली किसकी तरह दिखते हैं? फंजाई की तरह दिखते हैं। ठीक है, because of their elongated cells that branch into filament। elongated cells जो ब्रांच आउट करती है
ब्रांच आउट होती है हाइफे की तरफ। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग मेनली thermophilic and thermotolerant actinomyces are responsible for decomposition of organic matter। तो ये क्या करता है, decomposition of organic matter। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ व्हाट, थर्मोफिलिक, thermophilic and definitely thermotolerant। थर्मोफिलिक और थर्मोटॉलरेंट जो एक्टिनोमाइसिस रहते हैं वही ये काम कर सकते हैं, दैट इज डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जनरली एक्टिनोमाइसिस ग्रो ऑन अ फ्रेश सबस्ट्रेट। कहाँ करते हैं ग्रो, ग्रो ऑन अ फ्रेश सबस्ट्रेट। ठीक है, मोर स्लोली, दे आर ग्रो ऑन अ फ्रेश सबस्ट्रेट मोर स्लोली, तो उनको क्या चाहिए देखो, डिकम्पोजिशन कर। तो जो फ्रेश रहेगा वहां पे वो डिकम्पोज ज्यादा नहीं करेंगे, तो ये मोर स्लोली ग्रो करेंगे। चलो इसको ना हम रेड में डाल देते हैं, तो ये मोर स्लोली फ्रेश में ग्रो करते हैं। ठीक है, so during the composition process the actinomyces degrade natural substances such as chitin and cellulose। तो डिग्रेडेशन में वो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, डिग्रेडेशन में जब भी वो डिग्रेडेशन करते हैं तभी वो किसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट चिटिन को। ठीक है, चिटिन और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट। नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ थर्मोफिलिक एसिडोफाइल्स आर, ये जो नेचुरल है, नेचुरल हैबिटेट्स, ये जहाँ पाएंगे एसिडो, जो थर्मोफिलिक एसिडोमाइसिस, थर्मोफिलिक एसिडोमाइसिस जो है आर सीरियोस, सीरियोस है, कॉर्नियस है। ओके, एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड क्लोज टेबल्स। ओके, some actinomycetes are found is responsible for allergic symptoms। कुछ क्या करेंगे, एलर्जिक सिम्टम्स को इंडिकेट करेंगे। लाइक इन अ, कहाँ रहेंगे मोस्टली, इन अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, एक्सट्रिंसिक एलर्जी एल्वेलाइटिस, क्या बोलेंगे इसको, लेट मी राइट इन रेड पेन, एक्सटेंसिव एलर्जिक एल्वेलाइटिस, एल्वेलाइटिस, व्हाट इज इट, ई ए ए। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एल्वेलिस में होंगे, राइट, ट्रैकिया भी छोटे से जो होते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, होता प्रॉब्लम। ओके, नाउ after actinomycin we have a cyanobacteria, the third part, cyanobacteria। अब ये cyanobacteria क्या है, they are a gram negative, they are first of all what, gram negative। क्या है ये, gram negative photosynthetic prokaryote, gram negative photosynthetic prokaryotes, prokaryotic which perform oxygenic photosynthesis। ये क्या करेंगे, write it properly, perform oxygenic, क्या हो गया इस पेन को यार, राइटिंग स्मूथली, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक्स। ठीक है, दैट्स ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट। नाउ दिस कैन लिव इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन। ये क्या होंगे, फ्रेश वाटर में भी रहेंगे और मरीन में भी रहेंगे। क्या हैबिटेट्स पे पाया जाएगा। Okay, so when you talk about they are responsible for blooms in a polluted water, अगर ये polluted water के कांटेक्ट में आ गए तो दे फॉर्म ऑफ ब्लूम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दे फॉर्म ऑफ
ब्लूम्स। तो ब्लूम्स क्या है इन पॉलिटिकल, उसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन, कॉल्ड एज अ यूट्रोफिकेशन। ब्लूम्स को क्या बोलेंगे, यूट्रोफिकेशन बोलेंगे। ठीक है। दे हैव अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनके पास ना, साइनोबैक्टीरिया के पास ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, साइनोबैक्टीरिया हैव अ photosynthetic pigment like plant, photosynthetic pigment है like a plant। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा, राइट, क्या है इनके पास, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है लाइक प्लांट। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, कौन सा है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए जो रिजेंबल करता है प्लांट के। देन इनके पास कैरोटिनॉइड्स भी, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स भी है इनके पास। एंड क्या है, फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स भी है इनके पास as a food stored in the form of साइनोफाइशियन स्टार्च। तो ये सब कुछ है, तो ये फूड को स्टोर करता है, क्या करता है, फूड को स्टोर करते हैं रिएक्शन के बाद। तो फूड को स्टोर करेंगे तो कौन से फॉर्म में करेंगे, दैट्स कॉल्ड साइनोफाइशियन स्टार्च, साइनोफाइशियन स्टार्च। फूड को स्टोर कैसे करेंगे, साइनोफाइशियन स्टार्च में कन्वर्ट करके। देन उनके पास लिपिड भी रहेगा, लिपिड ग्लोब्यूल में कन्वर्ट होगा, लिपिड ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होगा। एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, एंड प्रोटीन्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये सब करेंगे वो। साइनोबैक्टीरिया हैव द सेल वॉल, तो साइनोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल, इनकी जो सेल, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, इनकी जो सेल वॉल है वो जो बनी है ना, वो पेप्टिनोग्लाइकन से, इससे बनी है सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है। जो पेप्टिडोग्लाइकन से, ओके, बहुत यूजफुल किसके लिए, लेट्स सी। पेप्टिडोग्लाइकेंस, देन इनके पास जो डीएनए रहेगा वो नेकेड डीएनए, ठीक है, इट्स नॉट प्रोटेक्टेड। और राइबोसोम्स रहेंगे, वो क्या रहेंगे, 78 राइबोसोम्स रहेंगे। एंड एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी उनके पास नहीं रहेगी। ठीक है। द रेड सी इज नेम, अभी देखो यहाँ पे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है साइनोबैक्टीरिया का, दैट इज कॉल्ड एज अ रेड सी। अब ये रेड सी क्या है, रेड सी मतलब सी का जो कलरेशन है वो रेड होगा। अभी क्यों रेड हो गया, बिकॉज ऑफ समथिंग, व्हाट्स दैट, रेड सी नेम आफ्टर द कलरेशन प्रोवाइडेड बाय द रेड कलर्ड साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो रेड कलर्ड साइनोबैक्टीरिया रहेंगे ना, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो जो सी का वाटर है वो रेडिश दिखाई, ओके। और ये रेड कलर साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या है, ट्राइकोडेस्मियम। लेट मी राइट फर्स्ट, ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मिया एरिथ्राइयम, एरिथ्राइयम, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, व्हाट्स दैट, ट्राइकोडर्मेस्पियम एरिथ्रा, एरिथ्राइयम। ठीक है, ये है रेड सी का एग्जांपल ऑफ, ठीक है, इसके अंदर ये रहेगा साइनोबैक्टीरिया, एरिथ्राइयम से क्या रहेगा, रेड कलर, ट्राइकोडस्मियम एरिथ्रासिस। देन साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये जो साइनोबैक्टीरिया के, ये जो साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। इसके पास क्या होता है, हेटेरोसिस्ट होती है, हेटेरोसिस्ट होती है। अगर अच्छा ये सेल ड्रॉ करता है, ठीक है, तो एक बीच में एक ऐसा एक स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। वो क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन को प्रोत्साहित करेगा। दिस आर मॉडिफाइड सेल इन विच फोटो सिस्टम 2 इज एब्सेंट। जो मॉडिफाइड सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2 जो है यहाँ पे क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ठीक है, दे डू नॉट टेक, और फोटो सिस्टम नहीं रहेगा उसके बाद। Hence, non-cyclic photophosphorylation does not exclude। अगर फोटो सिस्टम 2 नहीं रहेगा तो जो नॉन साइक्लिक फोटो
फॉस्फोराइलेशन जो है ना वो नहीं होगा, नॉट टेक प्लेस। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म थ्रू द एंजाइम। तो इसके पास कौन सा एंजाइम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, कौन सा एंजाइम है इसके पास, पहले एंजाइम नेम है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज है इसके पास एंजाइम। इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम से क्या करेगा, N2 फिक्सेशन करेगा, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये एब्सेंट है। क्यों नहीं है, कि ये जो हेट्रोसिस्ट है वहां पे ये जो सिस्टम होता है टू, ये फाउंड आउट नहीं होता। ओके, पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। यस, नाउ we are moving to the next part, that is for rickettsia. We're going to talk about now rickettsia. Okay, in case of rickettsia, these are a small aerobic and gram negative. They are what, small aerobic and gram negative bacteria. They belong to the phylum Protobacteria. का जो फाइलम रहेगा वो कौन सा रहेगा, फाइलम प्रोटोबैक्टीरिया, प्रोटोबैक्टीरिया। ठीक है, which are capable of growing in a low level of nutrients. ये क्या करेंगे, लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स में ग्रो करेंगे। ठीक है, एकदम लो लेवल न्यूट्रिएंट्स में, एंड हैव लॉन्ग जनरेशन टाइम रिलेटिव टू द अदर ग्राम नेगेटिव। और उनके पास क्या है, लॉन्ग जनरेशन टाइम, उनके पास क्या है, लॉन्ग जनरेशन टाइम एज कंपेयर टू द अदर वन। ठीक है, सो Rocky Mountain spotted fever. Rickettsia mostly are famous for to cause a Rocky Mountain spotted. अरे अच्छे से लिखते हैं हम लोग, मुझे बना रहे हो ना तो अच्छे से करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। ठीक है, दैट्स फॉर RMSF। ठीक है, इससे क्या होता है, इज अ थिक बोन ह्यूमर, व्हाट, थिक बोन ह्यूमन डिसीज। ठीक है, ह्यूमन डिसीज caused by rickettsia. Rickettsia. Who is a causative agent of this? Cause of what? Rickettsia. Rickettsia. ठीक है, rickettsia. An obligate intracellular bacteria. ये कौन है? Is a obligate intracellular bacteria है ये। ठीक है, okay. Now we actually done with this. Now we are going to talk about the next kingdom. We are going to talk about the second kingdom. Let's talk about the second kingdom. चलो, कहाँ जगह है हमें, हमारे पास जगह है क्या, हमारे पास जगह है। So we are going to talk about the second kingdom, that is kingdom protista. Kingdom protista. चलो, उसके बारे में हम बात करेंगे। They are what? They are eukaryotic unicellular, eukaryotic and unicellular organisms. Okay, it includes three broad groups. Let's talk about it. So when you talk about the protista, we have some groups. Yeah. Okay, so they are divided into the further thing. First, plant-like protista. First is plant-like protista. Photosynthetic. क्या रहेंगे ये, फोटो सिंथेटिक रहेंगे, डेफिनेटली प्लांट लाइक तो फोटोसिंथेटिक रहेंगे। उसमें भी क्या क्लासिफिकेशन, इसमें भी क्या है,
क्लासिफिकेशन है। सो फर्स्ट है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा पायरोफाइटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइनोफ्लैजेला। डाइनो टू है ना, फ्लैजेला कितने रहेंगे? तो फ्लैजेलेट्स। ओके, डाइनोफ्लैजेलेट्स। इसके बाद है हमारे पास ट्राइसोफाइटा। ट्राइसो पायरोफाइटा ही को ट्राइसोफाइटा। ट्राइसोफाइटा ही क्या बोलेंगे? डायटम्स इसको बोलेंगे। ठीक है, देन वी हैव अ यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा। और यूग्लिनोफाइटा क्या है? यूग्लिनोइड फ्लैजेलेट्स। यूग्लिनोइड फ्लैजेलेट्स। Let's okay. Now, we have a plant like protista. Then we have a fungi like protista. We have a fungi like protista. Okay, उसको हम क्या बोलेंगे? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड। Then we have a animal like protista. Animal like protista. इसको हम बोलेंगे प्रोटोजोन्स। क्या बोलेंगे इसको? प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इसमें है अमीबॉइड। फर्स्ट में आएगा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। देन इसके बाद आएगा फ्लैजिलेटेड। देन उसके बाद आएगा स्पोरोजोन्स। देन उसके बाद आएंगे सीलिएटेड प्रोटोजोन। ठीक है, तो भी अच्छा, एक सेकेंड, हमने ना ये जो भी किया ना फंगाई लाइक प्रोटिस्टा, दे आर आल्सो फर्दर डिवाइडेड। माइक्सोम, व्हाट्स दैट? लेट मी जस्ट focus on this. Myxo, mycota. Okay, myxomycota. That is a cellular slime. A cellular रहेंगे, slime मोल्ड रहेंगे। ठीक है, तो फर्दर इज एक्रासियोमाइकोटा। एक्रासियो वो रहेगा यहाँ पे यार। सो एक्रासियो माइकोटा। दिस इज सेल्यूलर स्लाइम। ये क्या है? सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड है। ठीक है, ये सब। सो इन दिस व्यू ऑफ इवोल्यूशन, जो भी हम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे, सो इन दिस व्यू ऑफ इवोल्यूशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा एक्ट एज अ कनेक्टिंग एज। जो ये प्रोटिस्टा है ना, ये एक्ट लाइक अ कनेक्टिंग एज। जो ये प्रोटिस्टा है, दिस एक्ट लाइक अ कनेक्टिंग, कनेक्टिंग नहीं रे बाबा, इट्स कनेक्टिंग। क्या लिखा था हमें यहाँ पे? कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसकी है ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन? एक्ट लाइक कनेक्टिंग बिटवीन द प्रोकैरियोट किंगडम मोनेरा, between what? Monera and fungi. देखो, जो मोनेरा है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक। क्या है ये? प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, और जो फंजा है वो क्या है? मल्टी सेलुलर। क्या है? मल्टी सेलुलर। इन दोनों के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है? प्रोटिस्टा। ओके, द टर्म प्रोटिस्टा वाज गिवन बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेस। ये जो इसका टर्म है, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया इन 1866 में। ठीक है, द ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा, इसको ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा कैसे बोलेंगे? तो इसके बीच में कोई तो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स।
So what we're talking about? Characteristics in common. So common characteristics. कौन सी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है? लेट्स टॉक. These are mostly aquatic. ये क्या रहेंगे? Mostly aquatic रहेंगे. ठीक है. Second, यूकैरियोटिक सेल ऑफ प्रोटिस्टा possesses a well defined nucleus. उनके पास क्या रहेगा? जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक जो सेल है उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. क्या रहेंगे उसके पास? बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? प्रेजेंट. ठीक है. फोर्थ वन, प्रोटीन्स रिप्रोड्यूस बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली. जो प्रोटीन्स है रिप्रोड्यूस करेंगे, नॉट प्रोटीन्स, आई एम सॉरी, तो प्रोटीन्स लिखना था मुझे, यहाँ पे प्रोटीन्स लिखना है. ठीक है. व्हाट प्रोटिस्ट reproduce both asexually and sexually. ठीक है. both वे में क्या प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है. तो जो असेक्सुअल रहेगा वो फ्यूजन रहेगा और जाइगोट फॉर्मेशन. इसमें क्या रहेगा? फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन इनटू. ठीक है. दे मे बी ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. ये क्या रहेंगे? फिफ्थ वन, फिफ्थ पॉइंट, मे बी ऑटो और हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर रहेंगे. ठीक है. Now we are going to talk about protist in detail. चलो, ये तो हमने उसका क्लासिफिकेशन किया. तो अभी हम बात करेंगे इसके बाद. सॉरी, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. क्या बात कर रहे हैं हम लोग? लेजर में ये तो ओके, बी रेडी. चलो, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, इसमें हम लोग डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में बात करेंगे, देन डायटम्स के बारे में बात करेंगे, यूरिनोफाइट्स के बारे में बात करेंगे. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट plant like this. So we are going to talk about this section. Okay. So let's go further. Let's talk about in detail. Okay. So first, okay, let me do one thing. Okay. एक पेज में तो नहीं आएगा ये, तो मैं ट्राई करता हूँ 3 पढ़ाने के लिए. ओके चलो. प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के बाद ओके, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. जो फर्स्ट है दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट. जो फर्स्ट है इट्स कॉल्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स. बस इसके बाद में बात करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स. सो नाम ही काफी है. दे आर अबाउट 1000 स्पीशीज ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. क्या है? 1000 स्पीशीज ऑफ फोटोसिंथेटिक. ठीक है. दे बिलोंग्स टू डिवीजन पायरोफाइटा. क्या है? पायरोफाइटा में बिलोंग करेंगे. पढ़ा था हमने अभी. एंड क्लास करेगा डाइनोफाइसी. दिस इज फाइलम और इसका क्लास क्या रहेगा? डाइनोफाइसी. दे आर यूनिसेल्युलर. क्या रहेंगे ये? यूनिसेल्युलर. दे आर व्हाट? यूनिसेल्युलर. मोटाइल यूनिसेलुलर रहेंगे, टाइल रहेंगे, एंड सबसे बढ़िया क्या रहेंगे? बाइफ्लैजेलेटेड. बाइफ्लैजेलेटेड रहेंगे. ठीक है. दे आर गोल्डन ब्राउन कलर्ड. कौन से कलर रहेंगे उसका? गोल्डन ब्राउन कलरेशन में रहेंगे. दे फॉर्म द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. ये क्या काम करेंगे?
फाइटोप्लैंक्टन फॉर्म फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। Their macronuclei possess the condensed chromosomes के जो माइक्रोन्यूक्लियाई रहेंगे, के माइक्रोन्यूक्लियाई इसके अंदर ना कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम रहेंगे, क्या रहेंगे, कंडेंस क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है। इवन इन अ इंटरफेस कॉल्ड अ मेसेंकेरियम, क्या बोलेंगे इसको, मेसेंकेरियम, ठीक है, कंडेंस फॉर्म में रहेंगे। समटाइम्स दे एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ बायोल्यूमिनेंस, तो डायफ्लोरेसेंट रहेंगे तो क्या फिनोमेना शो करेंगे, बायोल्यूमिनेंस, ठीक है, बायोल्यूमिनेंस, okay, that's called dinoflagellates. Now after dinoflagellates we have into picture chrysophytes, क्या है हमारे पास, chrysophytes, ये जो chrysophytes भी काम करेंगे, काम करेंगे, लेट्स सी, दिस इंक्लूड द डायटम्स एंड डेसिमाइड्स, इनके पास क्या होंगे, डायटम्स, के पास क्या रहेंगे, डायटम्स रहेंगे एंड डेसिमाइड्स रहेंगे, ठीक है, डेसिमीड्स नॉट डेसिमाइड्स, डेसिमीड्स, डेसिमीड्स बी स्पेसिफिक, क्या रहेंगे इसका, डेसिमीड्स रहेंगे। Diatoms are mostly aquatic and sometimes present in a moist terrestrial habitat. Diatoms क्या रहेंगे, aquatic और terrestrial sometimes. They are very good pollution indicator. ये क्या है, good pollution indicator. चलो इसको रेड में डाल, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर कौन है, डायटम्स, ठीक है। The diatoms do not decay easily as their body is covered by siliceous cell. तो diatom bismides के पास क्या होता है, siliceous cells रहता है, तो do not decay easily, डीके हो जाता है बट डू नॉट डीके दैट मच इजीली, ठीक है। तो अगर नहीं करेंगे तो सिलिशियस सेल से बने हुए हैं, तो दे पाइल अप द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, तो दे फॉर्म द पाइल अप, पाइल अप द वाटर बॉडीज, वाटर बॉटम, ठीक है। अगर वाटर बॉटम में पाइल अप हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, फॉर्म ऑफ डायटोमाइट और डायटोमेशियस, इसको क्या, इसको ही क्या बोलते हैं, डायटोमेशियस, और क्योंकि इकट्ठा हो जाएंगे, राइट, डायटोमेस और इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको अच्छे से समझना, किसकी वजह से, सिलिशियस सेल्स रहेंगे, सिलिशियस सेल्स रहेंगे तो वो डीके प्रॉपर नहीं हो जाएगी, सेल्स रहेंगे तो क्या होंगे, पाइलअप होगा, डायटोमस अर्थ होगा, किसकी वजह से, डेस्मियाट से, डायटम्स नहीं, डायटम्स क्या है, गुड, वो क्या है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर करो, चलो। नाउ थर्ड, दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक यूग्लिनॉइड, थर्ड के बारे में बात करेंगे, दैट इज यूग्लिनॉइड, भी यूग्लिनॉइड है क्या, दिस आर अ यूग्लिना लाइक यूनिट्स, ये क्या है, यूग्लिना लाइक यूनिसेल्युलर फ्लैजेलेट, यूनिसेल्युलर फ्लैजेलेटेड, फ्लैजेलेट्स, ठीक है, इनके पास ये, they mostly in a stagnant, found in a what, stagnant fresh water. Instead of cell wall they have a protein rich layer, सेल वॉल की जगह उनके पास, नॉट, उनके पास क्या रहता है, प्रोटीन रिच, प्रोटीन रिच क्या रहता है, अभी तो बोला मैंने, बोलो क्या बोला, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, उस लेयर को क्या बोलेंगे, प्रोटीन रिच लेयर को क्या बोलेंगे, पेरिकल बोलेंगे, चलो लेट मी राइट इट, पेरिकल, ओके,
ये इसको हेल्प करेगा बहुत। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल क्या है उसका, पेलिकल से और प्रोटीन रिच लेयर विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। पेलिकल क्या करता है, पेलिकल क्या करेगा, टेल मी, विच मेक्स बॉडी, ओके वेट, द बॉडी फ्लेक्सिबल। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड। ओके, मैं ओबीएस इज वर्किंग राइट, यस। तो क्या बनेगा, मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल, ये हमने देखा। Which makes the body flexible, the pterygium present in iguanoid. They have a two flagellas, long and short. इसके पास ना दो फ्लैजेला होते हैं। जो उनके फ्लैजेला रहेंगे, एक रहेगा लॉन्ग, एक रहेगा शॉर्ट। ठीक है, जो लॉन्ग है वो विप फ्लैश है, उसको क्या बोलेंगे, विप फ्लैश। जो शॉर्ट है उसको बोलते हैं टिंसर। Okay. So the food is stored in a proteinaceous granules called pyrannoids. जो यूग्रेनाइड्स है वो फूड को कैसे स्टोर करते हैं, फूड को कैसे स्टोर, फूड स्टोर, फूड स्टोर एज व्हाट, पायरेनोइड्स। ये पायरेनोइड्स क्या, पायरेनोइड, पायरेनोइड जो है वो क्या है, इट इज अ प्रोटीनियस ग्रैन्यूल, प्रोटीशियस, प्रोटी और प्रोटीनाशियस ग्रैन्यूल। ठीक है। Now, photosynthetic euglenoids behave like a heterotrophs in a dark. This mode of nutrition is called a mixotrophic. अभी ये देखो, ये important point. They form the mixotrophic. मतलब अगर ये डार्क में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, डार्क में रहेंगे. So when they are into the dark, they act like a, behave like a heterotrophs. When they are found, they behave like heterotrophs. Heterotrophs. जब ये डार्क में रहेंगे, तो it's called mixotrophic. Okay, so they are mixotrophic. The chief member of this group is Euglena. इसका सबसे बड़ा मेंबर कौन है, यूग्लिना। Okay, Euglena is a chief member of this group. ठीक है, यूग्लिनोइड का यूग्लिना is a regarded as a connecting link between animals and plants. जो यूग्लिना है ना, यूग्लिनोइड का जो, देखो अभी कौन सा फिनिश, जो यूग्लिना है वो कनेक्टिंग लिंक, कनेक्ट करता है एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है जो हमने कवर किया। ओके, नाउ हमने क्या किया, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा किया। अभी हम देखेंगे फंगाई लाइक प्रोटिस्टा। इसको देखेंगे फंगाई लाइक प्रोटिस्टा। लेट्स टॉक अबाउट दैट फंगाई लाइक प्रोटिस्टा। जो फंगाई लाइक प्रोटिस्ट है, दे possess the characters of both animals and fungi. Obviously fungi like protists, तो उनके कैरेक्टर्स क्या रहेंगे, they have a both character fungi as well as animals. ठीक है, दे आर कम्बाइनली कॉल्ड एज अ फंगस एनिमल्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फंगस। इसको क्या बोलेंगे, फंगस एनिमल। दे हैव द सेम कैरेक्टर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ फंगस एनिमल। तो क्या बोलेंगे, फंगस एनिमल बोलेंगे इसको। सो दे शो द सैप्रोफाइटिक फूड हैबिट। क्या है ये, सैप्रोफाइटिक फूड हैबिट को इंडिकेट करते हैं। अंडर द सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म द प्लाज्मोडियम। अगर उनको सुटेबल कंडीशन मिली, सुटेबल कंडीशन अगर इनको प्राप्त होती है, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सैप्रोफाइटिक फूड हैबिट्स तो होती है। ओके,
दे कंज्यूम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर करते हैं। अगर इनको सुटेबल कंडीशन मिली तो दे फॉर्म अ प्लाज्मोडियम, क्या फॉर्म करेंगे, प्लाज्मोडियम फॉर्म करेंगे इन अ सुटेबल कंडीशन। मोस्टली क्या रहता है, सैप्रोफाइटिक। ठीक है, okay, on the basis of occurrence plasmodiums are divided into what, a cellular। तो अभी इसका डिवीजन को, a cellular, a cellular और प्लाज्मोडियल स्लाइम, क्या बनेंगे, प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड की तरह बात करें। क्या एग्जांपल, पाइसेरम, इसके एग्जांपल्स क्या है, इंपॉर्टेंस है इसके एग्जांपल, राइट इट टू पेन, पाइसेरम, पाइसेरम, फिलिको, फिलिको, फिलिको एंड सेप्टिका। ओके, और सेलुलर, वही नेक्स्ट इसका सेलुलर स्लाइम मोल्ड, सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ये जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड है, इनके एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल टिक्टिनोस्टीलियम, जो एग्जांपल लिखते हैं पहले यहाँ पे, टिक्टिनो, टिक्टायोस्टेलियम, स्टेलियम, देन पॉलीस्पॉन्डाइलियम, पॉलीस्पॉन्डाइलियम। ओके, ये एग्जांपल है। तो हमने क्या किया, फंगाई लाइक को भी कवर करते हैं। अब एक थोड़ा सा बड़ा पैटर्न विद एनिमल लाइक बुक्स, उसके लिए मुझे थोड़ा ज्यादा पेज लगेगा, तो लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। ओके चलो, क्या हम बात करेंगे, एनिमल लाइक बुक्स की बात करें। ठीक है, चलो, द मोस्ट प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, इट्स प्रोटोजोन्स, आर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। तो जो मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स के रिलेटिव वो कौन है, प्रोटोजोआंस है, जो प्रेडेटर्स और पैरासाइटिक है, राइट। डिवाइडेड इनटू द फोर मेजर ग्रुप में वो डिवाइडेड कर दिए। तो एनिमल लाइक प्रोटोस, प्रोटिस को ही क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआंस, क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआंस। और वो डिवाइडेड इनटू व्हाट, थ्री पार्ट में डिवाइडेड। ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट इन डिटेल। फर्स्ट इज amoeboid protozoans. First is amoeboid protozoa। ठीक है, फर्स्ट क्या है, amoeboid protozoans, क्योंकि क्या है, लेट्स सी, they live in a fresh water, they are obviously found in what, fresh water में पाए जाएंगे। ठीक है, moist soil and salt water, fresh water, moist soil, and is it found in the salt water, yes, they found in a salt water as well, as a parasite। ये क्या है, पैरासाइट, क्या ये, ऑल आर पैरासाइट। दे मूव विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, इनकी जो मूवमेंट होगी वो किसकी वजह से होगी, सूडोपोडिया की वजह से, सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया की वजह से। अदर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, एंटा, जिसे डिसेंट्री होता है, राइट, एंटा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, एंड एंटा अमीबा जिंजीवालिस, जिंजीवालिस cause various digestive and oral diseases। ये जो है ना, ये जो है ना नटखटे लोग, ये क्या करते हैं, they cause digestive and oral diseases, digestive
and oral diseases. When engulfed through a polluted water, mostly क्या होता है because of engulf of polluted वाटर में पाए जाएंगे। तो अगर पॉल्यूटेड वाटर engulf करोगे तो आपको ये सब होगा। ठीक है। Then we have a second thing that we have a flagellated protozoans. क्या है पास flagellated protozoans। ठीक है। फ्लैजेलेटेड में क्या पाया जाएगा? दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। दे आर व्हाट? आइदर फ्री लिविंग है और क्या है? पैरासाइटिक इन नेचर। ठीक है। ओके नाउ इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीजें हमें करनी है। सो प्लीज मेक श्योर यू हैव अटेंशन। वी हैव अ एग्जांपल ओवर हियर। सो ए में जो है वो वी हैव अ ट्रिपैनोसोमा स्पीशीज। ट्रिपैनोसोमा स्पीशीज। ये देखो इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज भी आए। ये जो है ना इट इज कैरिड बाय इसकी वजह से क्या होता है चलो ये कैरिड बाय होती है दिस थी फ्लाई की वजह से। और इसकी वजह से क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस होता है। और स्लीपिंग सिकनेस मेजॉरिटी किस में होता है? अफ्रीकन। अफ्रीकन तो इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस caused by trypanosoma species uh, who is a vehicle sticky fly. Okay. Then second, Leishmania species. Okay, Leishmania species. Leishmania species sand fly से कैरी सैंड फ्लाइज को कैरी करती है और इससे होता है काला आजार। तो क्या होता है? काला आजार होता है which also called as the down fever. Okay, then we have a Giridia species. ये क्या करती है? गिरिडियासिस। दे कॉज द गिरिडियासिस। okay, cause गिरिडियासिस। then we have a Trichomonas vaginalis. Trichomonas 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 vaginalis vaginalis। ओके ये क्या कॉज करेगा? रिकॉल किया रिकॉल। ठीक है। ओके सो ये हमने क्या बात की? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में बात की। चलो इसको रिपीट करते हैं। ट्रिप्टोसोआ जो स्पीशीज है स्टेरस फ्लाइज को क्या करेगा? व्हीकल की ट्रैक करेगा। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होगा। लिशमेनिया सैंड फ्लाई कैरी फॉरवर्ड करेगी, काला आजार होगा, डबल फीवर बोलेंगे इसको। गैडिया गेडियासिस करेगी, ट्रिकोनोमा वैजिनालिस ल्यूकोरिया कॉज करेगा। ठीक है ये तो हमने सीखा। बी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में और एक थर्ड चीज है दैट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। क्या है? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो ये सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या कॉज करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। So they are aquatic and move actively due to the presence of cilia. तो cilia क्या करेंगे? Aquatic है और मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ cilia। ठीक है ये पॉइंट क्लियर है। They show the nuclear dimorphism. They show what? Nuclear dimorphism। न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन ये शो करेंगे मैक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस। एक होगा मैक्रो न्यूक्लियस, एक होगा
माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, एग्जाम्पल पैरामीशियम, इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्जाम्पल इसका रहेगा पैरामीशियम। ठीक है, चप्पल लाइक ऑर्गेनिज्म, राइट, सीलिया रहेंगे ना इसके, राइट, यस और नो, या पैरामीशियम। देन अभी इसमें हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा, माइक्रो और माइक्रो, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। फर्स्ट मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो रहेगा वो क्या करेगा, कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कंट्रोल्स मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ। जो कि सेकेंड वन रहेगा, दैट इज माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, उसको ही बोलेंगे रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, प्रोडक्टिव न्यूक्लियस। ये क्या करेगा, कंट्रोल्स रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली कंट्रोल्स reproduction. Then we have another class that is very easy one in a proposed ones. So let's go get it out. That is sporozoans. Sporozoans can, they have a infections. They have an infection spore like stage. Okay, infection spores like stage. ठीक है, in their life cycle all are endoparasite. ये क्या रहेंगे, endoparasite, all are endoparasites. लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सीलिया, लोकोमोशन उनका कैसे होगा, लोकोमोशन उनका होगा सीलिया से होगा, लोकोमोशन कैसे होगा, सीलिया से। फ्लैजेलेटेड एंड सूडोपोडिया, सीलिया होगा, ओके, क्या रहेगा, सूडोपोडिया, फ्लैजेला भी रहेगा उनके पास, फ्लैजेला, सूडोपोडिया। ठीक है, और उनके एग्जांपल्स क्या रहेंगे, प्लाज्मोडियम, एग्जांपल्स का मोस्टली प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो हमने देखो कि एनिमल लाइक रोबस्टा भी हमने कर दे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, किंगडम फंजाई के बारे में बात करेंगे, दैट इज सी, क्लास सी, किंगडम फंजाई। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। इट इज व्हाट, इट इज यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, eukaryotic organism है। So fungi are a group of eukaryotic or chlorophyllous, non-photosynthetic and heterogametic। ये कौन होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, so the basic features of fungi include, के basic features कौन से होते हैं, let's talk about these basic features। चलो बेसिक फीचर क्या है इसका, फर्स्ट, दे लैक
क्लोरोफिल, क्योंकि डेफिनेटली क्या नहीं है, फोटोसिंथेटिक नहीं है, तो इनके पास क्या नहीं रहेगा, क्लोरोफिल नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई दे आर हेटेरोट्रोफ्स। ठीक है। द सेकंड पॉइंट, they cannot ingest the solid food, okay, but absorb it after digestion. So जो solid food है can't ingest, but they can digest it and absorb. Okay, absorb. Okay, okay, okay. Wait. They can't ingest the solid food, but it can absorb after digestion. तो डाइजेशन बाहर होगा, उसके बाद वो क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे। ओके, सो द एंजाइम्स आर सिक्रेटेड ऑन द फूड, देन दे एब्सॉर्ब इट। तो सॉलिड फूड के ऊपर क्या होगा, एंजाइम्स, एंजाइम सिक्रेट होंगे, उसके बाद वो क्या होंगे, एब्सॉर्ब। तो फर्स्ट स्टेप वन इज एंजाइम सिक्रेटेड, step 2 is absorb. This point is very much clear to you. The third point, on the basis of food sources, they may be saprophyte or parasite. Mode of food कौन सा है ये, saprophyte है और act like a parasite। ठीक है। Cell wall in a fungi is made up of a nitrogen containing polysaccharide। जो सेल वॉल है किसकी, फंजाई, किसकी, फंजाई की, जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड, नाइट्रोजन पॉलीसैकेराइड। ठीक है, नाइट्रोजन पॉलीसैकेराइड से बनी हुई। सो इसके अंदर क्या क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड भी है, चीटीन भी है, क्या है, चीटीन भी है, राइट एंड ओके, तो ये सब चीजें उसके अंदर है। तो कैन आई से दैट फंगाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड द चीटीन। ये तो हो गया। रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन, जो इसका रिजर्व फूड है, इसका क्या है, रिजर्व फूड। अब ये नॉन सिंथेटिक है, तो उसको फूड को क्या करना पड़ेगा, रिजर्व फूड करना पड़ेगा। जो रिजर्व फूड है इसका वो क्या है, ग्लाइकोजन और ऑयल, ग्लाइकोजन और क्या हो सकता है, ऑयल हो सकता है। ठीक है। along with a certain bacteria, saprophytic fungi function as the main decomposers of organic matter। तो ये इसका मेन फंक्शन क्या है, ऑर्गेनिक मीन्स का फंक्शन, विद एक्सेप्शन ऑफ द ईस्ट। बट इसका एक एक्सेप्शन, इसका मेक इट क्लियर, इसका एक क्या है, एक्सेप्शन है, दैट इज ईस्ट, दैट इज ईस्ट। ठीक है। ईस्ट क्या है, यूनिसेल्यूलर, ईस्ट क्या है, यूनिसेल्यूलर है। ठीक है, ईस्ट क्या यूनिसेल्यूलर है, fungi and filamentous। Fungi bodies consist of a long, slender, thread-like structure called hyphae। Fungi क्या होते हैं, लॉन्ग, देखो अगर मैं ड्रॉ करूंगा, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, that is called hyphae, that's called hyphae। ठीक है, पॉली हाइपो। माइसेलियम इज अ नेटवर्क ऑफ, और ये जो नेटवर्क होगा इसको माइसेलियम बोलते हैं। माइसेलियम इज नथिंग बट अ नेटवर्क। ठीक है, और ये जो ये रहेगा और इज अ हाइपो, और ये रहेंगे उसके अंदर स्पोर्स। ठीक है, mycelium is a network of hyphae, some are called sinusotic hyphae that contains। अभी देखो यहाँ पे ना कुछ टाइप्स है, तो जो सिनोसाइटिक है बहुत कॉमन, चलो उसको हम लिखते हैं सिनोसाइटिक
ये सिनोसाइटिक हाइवे है क्या? लेट्स स्टडी अबाउट दैट इन डिटेल। ये क्या है? कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद किससे हो गए? फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मतलब क्या? ये देखो, अगर ये हाइवे रहेगा तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है? ये क्या रहेगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड, दैट इज कॉल्ड स्टीनोसाइटिक हाइवे। इसका ये डायग्राम, ठीक है? Another have a cross wall, that is a septate in their hyphae. Okay. Cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharide. जो सेल वॉल ऑफ फंगा है किससे बनी है? चिटिन एंड पॉलीसैकेराइड, ये तो हमने पढ़ा था। पॉलीसैकेराइड्स में क्या है? नाइट्रोजन। Okay, so that we have talked about. Now let's talk about the classification of fungi. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन। अभी इसके लिए ना थोड़ा मुझे ज्यादा पेज लगे, so I want a more place space, please, space. So fungi, ठीक है? जो फंगा है वो है माइक्सोमाइसेट्स। फर्स्ट माइक्सोमाइसेट्स, ठीक है? दैट इज बॉडी एज अमीबॉइड। बॉडी क्या है? बॉडी इज अमीबॉइड एंड नेकेड प्रोटोप्लाज्म, नेकेड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कैसा है? नेकेड। देन वी हैव अ यूमैसिड्स, यूमैसिड्स। यूमैसिड्स कैसी है? यूनिसेलुलर। क्या है? यूनिसेलुलर है, ठीक है? देन क्या है? मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, मल्टी सेलुलर है एंड फिलामेंटस, ठीक है? यूमैसिड्स आर डिवाइडेड इनटू, ठीक है? तो ये डिवीजन है उसका, लेट्स सी द डिवीजन। फर्स्ट फाइकोमाइसिट्स, इसमें डिवाइड है, फाइकोमाइसिट्स में डिवाइड। तो ये फाइकोमाइसिट्स है, स्टडी अबाउट माइसेलियम एस्पेटेड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। क्या है ये? माइसेलियम, माइसेलियम एस्पेटेड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड, ठीक है? मेंबर्स आर फाउंड इन एक्वाटिक, ठीक है? aquatic habitats, aquatic habitats, decaying wood in a damp places, also found in decaying wood in damp places. Reproduce asexually, they reproduce asexually, ठीक है? by zoospore or alpinospore, by forming of zoospore and aplanspores and spore, planospore, ठीक है? एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है एलोमाइसिस, एलोमाइसिस, read it properly, again there is a problem with the pain, एलोमाइसिस and Porphyria. Okay, the next one is Ascomycetes, Ascomycetes, माइसेलियम सेप्टेट, क्या है इसके पास? माइसेलियम सेप्टेट, नोन एज अ सैक फंगाई, इसको क्या बोलते हैं? सैक फंगाई बोलते हैं, ठीक है? मोस्टली क्या है? मल्टी सेलुलर, दे आर व्हाट? मल्टी सेलुलर है,
ठीक है। देन और यूनिसेल्युलर रहेगी तो ईस्ट इज अ एग्जांपल. ईस्ट इज फाउंड इन वेयर एस्कोमाइसिटिस. असेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया. असेक्सुअल अगर स्पोर प्रोड्यूस करेंगे तो क्या रहेंगे? कॉनिडियो फोर्स रहेंगे. कॉनिडियो फोर्स. ठीक है, दे आर कॉनिडियो फोर्स. सेक्सुअल जो स्पोर्स रहेंगे, सेक्सुअली जो स्पोर्स रहेंगे, दैट्स कॉल्ड एस्कोस्पोर. ठीक है, प्रोड्यूस ऑन स्काई. स्काई में प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या है? अल्ब्यूको. एग्जाम्पल इज अल्ब्यूको. अल्ब्यूको इज एग्जाम्पल. Now the next one is deuteromycetes. Deuteromycetes. Deuteromycetes क्या? It's called as an imperfect fungi. क्या बोलते हैं इसको? Imperfect fungi. क्यों भाई? क्यों बोलते हैं? Because इसके पास only asexual reproduction spore रहेंगे. Asexual reproduction spore रहेंगे. ठीक है? By conidia. By conidia formation. और इसका एग्जाम्पल रहेगा, सिनकाइट्रियम. सिनकाइट्रियम. सिनकाइट्रियम सिस्टी एंड एस्पेरगिलस. एस्पेरगिलस. ठीक है. एंड द लास्ट वन दैट इज Basidomycetes. Basidomycetes. Basidomycetes देखो क्या है? Grow in a site. इसको सेप्टेट बोलते हैं. They grow in a soil. Grow in a soil, on logs and in living plant forms. And living bodies. ठीक है. Reproduce vegetative. They reproduce vegetative by fragmentation. By fragmentation. Sex organs. Within sex organ. But sex organs are what? Sex organs are absent. See, sex organs are absent. Sex organs are absent. Why? Because of that, they use the fragmentation as a reproduction method. Example will be agaricus. Agaricus. Okay, हमने पूरा कर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई के बारे में. अभी हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई. क्या बात करेंगे? रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई. ठीक है. रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव में क्या होता है? वेजिटेटिव. So when you talk about vegetative, what comes to my mind? When a vegetative structure after separation produces. When vegetative structure. देखो सबसे स्टूडेंट ना कंफ्यूज इसी पार्ट में होते, तो प्लीज पे अटेंशन. आफ्टर सेपरेशन. तो सेपरेशन आपके नोट्स भी रेडी हो रहे राइट? तो चलो देखो यहाँ पे सेपरेशन. प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल. ठीक है. व्हेन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स आफ्टर सेपरेशन प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल. ठीक है. इट अकर्स बाय फॉलोइंग प्रोसेस. तो ये अकर्स बाय फर्स्ट फ्रैगमेंटेशन होगा. फ्रैगमेंटेशन. नेक्स्ट क्या होगा? बर्डिंग हो सकता है. नेक्स्ट क्या हो सकता है? फ्यूजन हो सकता है. नेक्स्ट क्या हो सकता है? स्क्लेरॉइड. ओके, लेट मी राइट प्लस स्क्लेरॉइशिया. स्क्लेरॉइशिया हो सकता है. एंड
लाइसोफॉर्म्स हो सकते हैं, लाइसोमॉर्फ्स हो सकते हैं, ठीक है, ये है वेजिटेटिव। देन असेक्सुअल मेथड, देन क्या है असेक्सुअल, असेक्सुअल मेथड में देखो क्या क्या होता है। ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट राइट फर्स्ट, ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, several mononucleated and binucleated, several mononucleated and binucleated spores are produced, spores produces, ठीक है, binucleated और mononucleated, which later germinate, which later or further germinate into new individual, into what, new individual, ठीक है, into new individual. It occur by the following methods. So कौन से occurs by first zoospore, then sporangiospore, होंगे, that is called phycomycetes, it's called phycomycetes, ठीक है, और कहाँ से होंगे, क्लैमाइडोस्पोर, ठीक है, उसके बाद किससे होंगे, ऑइडिया से होंगे, ऑइडिया और सेक्सुअली होगा, राइट, ऑनिडिया, देन एस्कोस्पोर, देन बैसिलोस्पोर एंड बाइन्यूक्लियोटिड्स, ठीक है, ये सब होगा। देन सेक्सुअल को देखो क्या क्या होगा, सेक्सुअल में लिखना पड़ेगा, इट इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्यूजन क्या होगा, फ्यूजन होगा डेफिनेटली, किसका होगा, फ्यूजन ऑफ कंपैटिबल न्यूक्लियर, फ्यूजन ऑफ कंपैटिबल न्यूक्लियर टेक्स प्लेस, इट इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स, इसके पास क्या क्या स्टेप्स होंगे, कितने होंगे, थ्री स्टेप्स रहेंगे, ओके, इट इन्वॉल्व थ्री स्टेप, दैट इज फर्स्ट प्लाज्मोगैमी, सेकेंड स्टेप that is karyogamy, and the third step that is meiosis, ठीक है, ये सब होगा, तो ये occurs first planogametic copulation, planogametic population, ठीक है, नेक्स्ट गैमेटोजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटोजियल to tangial contact, then gametangial copulation, gametangial, gametoangial, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो देखो क्या लिख रहा हूँ, एक सेकंड, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, gametangial, 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 gametangial population, then spermatogamy, the last one that is somatogamy, ठीक है, ये सबसे होता है, okay, have you understood this, just go through it once, okay.
Now let's talk about the one topic, that is heterothallism. Heterothallism. ये heterothallism है क्या? The phenomena of having two genetically different phenomena क्या है ये? Phenomena है of having genetically two different and compatible sexual traits and compatible sexual strengths. Okay, sexual क्या रहेंगे? Strengths in a two different thala, in two different thala is called heterothallism. It's called heterothallism. It was discovered by Blacksley. किसने डिस्कवर किया था? किसने डिस्कवर किया था? ब्लैकस्ली ने डिस्कवर किया था ये, ठीक है, इन न्यूटन। मतलब इसमें क्या रहेगा? हैविंग जेनेटिकली टू डिफरेंट कंपैटिबल, जेनेटिकली भी डिफरेंट रहेंगे, कंपैटिबल भी रहेंगे, सेक्सुअल स्ट्रेंथ्स रहेंगे इन टू डिफरेंट थैलाइड। ओके, दैट इज कॉल्ड हेटेरोथैलाइज। देन we have a mushroom and a fairy rings. Mushrooms and fairy rings. Mushrooms and fairy rings. अब ये क्या है? ठीक है, agaricus campestris. Agaricus, let me write, agaricus campestris is an edible mushroom. ये क्या है? Edible mushroom. तो edible mushroom कौन सा है आपका? Agaricus campestris. It is also called as a white button mushroom. इसको ही क्या बोलते हैं? बटन मशरूम। ठीक है, मशरूम, इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट बटन। The fruiting body of agaricus arises in a concentric rings. तो इसकी फ्रूटिंग बॉडी रहती है, फ्रूटिंग बॉडी रहती है, वो किससे अराइज होती है? और अराइजेस इन अ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, अराइज इन concentric rings. That's why it's called fairy rings, right? That's called as a fairy ring. इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? fairy rings. From a mycelium. इससे होती है from mycelium. What is mycelium? Network of hybrid in the soil. Now we are moving to the lichens. We are moving to the lichen part. देखो lichens क्या? They have a composite structure and consist of two dissimilar organs. They are what? They have a composite. Lichens have composite structure. They have a composite structure. Okay, and consist of two dissimilar organisms. Consist of two dissimilar organisms. ठीक है, organisms, yes, forming a symbiotic relationship. ये फॉर्म क्या करते हैं? ये फॉर्म क्या करेंगे? symbiotic relationship. ठीक है, symbiotic relationship को ये फॉर्म करेंगे. Lichens are formed by, lichens are formed by first, that is algal part. क्या इसका? algal part. फर्स्ट इसका क्या है? algal part. algal part क्या होता है? फाइकोबायोन होता है. क्या होता है? फाइकोबायोन होता है. मतलब क्या करेगा? फूड प्रोवाइड करेगा. तो किसको? फंजाई को प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट इसका पार्ट होता है फंगल.
जो कि क्या होता है, माइक्रोबायोम, जो क्या प्रोवाइड करेगा, शेल्टर करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा, algae को प्रोवाइड। ठीक है, दिस आर दी लाइकेंस। नाउ लाइकेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। लाइकेंस के भी क्या, थ्री टाइप्स। फर्स्ट, क्रस्टेस लाइकेंस, क्रस्टेस लाइकेंस। क्रस्टेस लाइकेंस क्या कहते हैं, दिस आर अ पॉइंट लाइक फ्लैट लाइकेंस, पॉइंट और फ्लैट लाइक। ठीक है, एग्जांपल इज कैलो ब्लैक, कैलो ब्लैक, example is callow black. Then we have a foliose lichens, foliose lichens. ये क्या है, follicle lichens? These lichens have a leafy structure. क्या है ये, leafy structures. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइपोकैमिया, हाइपोकैमिया, हाइपोकैमिया फाइसोट्स, फाइसोट्स, हाइपोकैमिया फाइसोट्स। ठीक है, देन वी हैव फ्रूटिकोस लाइकेंस, फ्रूटिकोस लाइकेंस, that is फ्रूटिकोस लाइकेंस। देखो नाम से ही पता चलता है क्या रहेगा, ब्रांच लाइकेन, क्या रहेगा ये, ब्रांच लाइकेन। ठीक है, फ्रॉम फिलामेंटस ब्रांच, फिलामेंटस ब्रांच रहेगी। इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे, इसके एग्जांपल्स रहेंगे क्लैडोनिया, क्लैडोनिया गिवेंसाई, एंड उसनिया, उसने लिया नहीं बाबा, उसनिया ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस। ओके, so these are the lichens. सो लाइकेंस की कुछ डायग्राम है, मैं फटाफट ड्रॉ करूंगा आपके लिए कि इसका ये रहेगा, जो ये ऐसे रहेंगे ना, दिस इज द थिंग आई एम टू ड्रॉ। ठीक है, ये है फंगल फ्रक्टिकेशन, क्या है ये, अंदर वाले फंगल, फ्रूटिंग बॉडी भी बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, फ्रक्टिफिकेशन, फ्रक्टिफिकेशन। ठीक है, दैट्स कॉल्ड क्रस्टोसियन, क्रस्टोस ऐसे लिखेंगे। देन फॉलियस लीफी लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। देन फॉलियोस और भी है जो ऐसे भी दिखेंगे, मतलब फॉलियोस लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, तो जैसे कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज फॉलियोस, फॉलियोस। ठीक है, देन यूस्नेया, यूस्निया क्या था, ऑस्ट्रेलिस रूटिंग बॉडीज था, ये रूट के अंदर रहेंगे। सो ये ऐसे ऐसे ग्रो करेंगे, रूटिंग बॉडीज की तरह दिखेंगे। ठीक है, ओके, दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द mycorrhiza. Let's talk about the mycorrhiza. देखो mycorrhiza है क्या, it is a symbiotic association, it is what, a symbiotic association, association, it is a symbiotic association between fungus and the plant, between fungus and a plant। ठीक है, प्लांट्स प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड, अभी प्लांट्स क्या करेगा, ऑर्गेनिक फूड को प्रिपेयर करेगा डेफिनेटली। ठीक है, उसमें क्या है, फंगस अलग है और प्लांट अलग है।
और जो फंगस रहेगा वो क्या करेगा, फंगस को देगा, ये इसको देगा फूड, फंगस को देगा। फंगस इन रिटर्न क्या करेगी, इन रिटर्न फंगस सप्लाइज वाटर, ये क्या करेगी, इसको वाटर सप्लाई करेगी एंड मिनरल्स, दोनों का फायदा हो रहा है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन, राइट, दैट्स कॉल्ड माइक्रोराइजम। ओके, दैट इज कॉल्ड अ माइक्रोराइजम। इसके बाद आता है हमारे पास किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। ओके, सो दिस आर वी गोइंग टू डू इन डिटेल, तो मैं सिर्फ भी रीड कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द किंगडम प्लांटे, दिस आर द chlorophyllus and the embryo forming organisms, mostly non-motile and functions as a processes in ecosystem, right? In kingdom Animalia, multicellular होते eukaryotic organisms है. The heterotrophic eukaryotic organisms which are multicellular and lack the cell wall. So animal में क्या होता है, cell wall नहीं रहता, ये हमें तो पता है, right? Present in this kingdom, animals have a advanced level of tissue organism. सबसे tissue level किसके पास रहेगा, animal के पास, in which the division of labor is highly specific. The two main groups among the animals are non-chordata and chordata. A detailed account of animal kingdom we are going to study in detail. तो प्लांट भी अलग से पढ़ेंगे, एनिमल भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नाउ viruses and viroids, this is the last part that we are going to talk about. So अभी हम क्या पढ़ेंगे, वायरसेस के बारे में वायरसेस के बारे में बात करेंगे। So when you talk about the virus, okay, the meaning of virus is poisonous fluid. It's what, poisonous fluid, ठीक है। The word was coined by the Louis Pasteur. किसने कॉइन किया था, लुइस पास्चर, ठीक है। कॉइन द, और वी कैन से नेम इज गिवन बाय लुइस पास्चर, पास्चर, बराबर लिखा है मैंने, हाँ। वायरसेस आर वेरी स्मॉल, कितने रहते हैं वायरसेस, आर वेरी स्मॉल, 0.05 टू 0.2 माइक्रोमीटर रहेंगे, ठीक है। इन्फेक्टिव है, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स विच कैन बी कॉल्ड लिविंग, ये वायरसेस को लिविंग बोल सकते हैं, एक्चुअली डेड रहेंगे, पर क्या लिविंग, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्यों लिविंग बोलेंगे, इसके पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लिविंग। एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन कॉपी वायरसेस, ये क्या करेंगे, ओन कॉपी करेंगे, ठीक है, that's why they are called living. They show only some properties of living beings, otherwise they behave like non-living, ये तो पता चल गया हमें। Hence these are referred to as a connecting link between the living and non, तो वायरसेस क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग की कनेक्टिंग लिंक बना, लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्या लिख रहा हूँ मैं, पेन को भी पता चल रहा है कि अभी खत्म हो रहा है चैप्टर, राइट, थक गया बेचारा। ओके, लिविंग एंड नॉन लिविंग की क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। वायरसेस, वायरसेस क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, द वायरसेस आर ऑफ टू टाइप्स, वायरसेस के क्या है, टू टाइप्स। फर्स्ट, एडिनोवायरस, एडिनोवायरस, एडिनोवायरस क्या है, चलो देखते हैं। डीएनए कंटेन, क्या रहेगा इसके पास, डीएनए रहेगा, इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे, HIV, क्या रहेगा इसका एग्जांपल, HIV, ओके। देन वी हैव अ another classification, that is retrovirus, retrovirus। so retrovirus में क्या होगा, RNA कंटेनिंग, क्या रहेगा ये, RNA कंटेनिंग रहेगा, इसका एग्जांपल क्या रहेगा, टेल मी, RSV, RSV का फुल फॉर्म, रावस, नॉट रावस मच्छी बाबा, इट्स रोज सार्कोमा वायरस, ठीक है, ये रेट्रोवायरस।
उसका क्लासिफिकेशन, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन वायरस, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन और है, कौन सा है, where they found, they categorize into what, so they have three classifications. So let's study about that. The first, एनिमल वायरस। कौन है, एनिमल वायरस। भाई एनिमल वायरस को क्या बोलेंगे, जू पैजिनजी, जू पैज पैजी नहीं, ठीक है। एग्जांपल्स क्या रहेगा, HIV और सार्को, HIV एंड सार्को, ठीक है। देन वी हैव अ प्लांट वायरस। देखो प्लांट वायरस क्या है, इट्स कॉल्ड फाइटोपैजिनिया, फाइटोपैजिनिया, ठीक है। इसके एग्जांपल है कि TM, टोबैको मोजाइक वायरसेस, ठीक है। एंड हैव अ बैक्टीरियल वायरसेस, बैक्टीरियल वायरसेस। ये बैक्टीरियल वायरसेस कहाँ फाउंड होंगे, पैजिनेशन, इट्स कॉल्ड पैजिनिया। एग्जांपल T4 पेज, T4 पेज, ठीक है। These are the viruses. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट और देखेंगे, वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। दे कैन रेप्लिकेट, वायरस क्या कर सकते हैं, दे कैन रेप्लिकेट, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड, in a host body they can synthesize a protein, in host they synthesize their protein with the help of host machinery, right. Third, they cause disease like other living organisms. So can I say they are disease causing? They are disease causing. So short form में लिखते हैं. And the fourth one, similar gene mutation. They cause what? Similar gene mutation as living organisms. What? Living organism. Okay, these are the things. ओके, सो ये होगी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक, ये हमने बात की लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक, कि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का पार्ट है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। तो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या है, लेट्स स्टडी। द फर्स्ट वन, do not have a protoplasm, do not have protoplasm, उनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है। they can be crystallized, they can be crystallized, ठीक है। they do not respire, उनको respiration की जरूरत नहीं है, they do not respire। in vitro culture it's not possible, उनका जो विट्रो कल्चर है, विट्रो, इन विट्रो नॉट विट्रो, इन विट्रो जो कल्चर है इसका पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। दिस आर ऑल अबाउट दी वायरसेस, ठीक है। अगर बात ही छेड़ी है तो स्ट्रक्चर को भी देखते हैं, किसको देखते हैं, स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। लेट्स स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। So viruses are non-cellular and ultra microscopic. They are what? Non-cellular and ultra
माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। Viruses has two components, or we can say two components. Two components इसके पास है, कौन से हैं देखते हैं। The first one, a core of nucleic acid, that is called nucleoid. Nucleoid क्या है? Core of nucleic acid, ठीक है। Then other components का कौन सा है? A capsid. कैप्सिड बोले तो क्या है? अ प्रोटीन कोट, क्या है ये? प्रोटीन कोट है, तो इसका न्यूक्लियोइड एंड अ कैप्सिड है। तो अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। थोड़ी चलो भी बना लेते हैं हम लोग। नाउ let me draw it properly for you guys. ठीक है, चलो कैसे वैसे हमारा वायरस बन गया। सो दिस आर द कैप्सुमियर्स, ये जो है ये क्या है? ये क्या है? ये कैप्सुमियर्स। कैप्सुमियर्स, कैप्सुमियर्स क्या होते हैं? टुगेदर फॉर्म अ कैप्सिड, ये फर्दर फॉर्म क्या करेंगे? कैप्सिड को फॉर्म करेंगे। और प्रोटीन कोट, ये क्या है? प्रोटीन कोट है, ठीक है। दैट इज अ कोट। तो बीच वाला क्या आपका जेनेटिक मटेरियल, ये आपका क्या है? जेनेटिक मटेरियल। अभी ये क्या हो सकता है? ये डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है। देन एनवेलप इन अ सम लार्जर वायरसेस, ये जो है ये क्या है? एनवेलप। एनवेलप मोस्टली इन लार्ज वायरसेस ऑफ फॉर्म, ठीक है। देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया हमारा वायरस का। देन वी हैव अ वायरॉइड्स। व्हाट वी हैव? अ वायरॉइड्स। तो देखो क्या है? वी हैव अ वायरॉइड्स। ये वायरस और वायरस का डिफरेंस स्टडी। आरएनए, दे आर व्हाट? आरएनए विदाउट कैप्सिड। विद कैप्सिड होगा तो वायरस रहेंगे। आरएनए विदाउट कैप्सिड अगर रहेंगे तो उनको वायरॉइड्स, क्या बोलेंगे तो? वायरॉइड्स। क्या बोलेंगे? वायरॉइड्स हम बोलेंगे, ठीक है। चलो, सो टियोडाइनर, किसने ये डिस्कवर किया था? टियोडाइनर, डाइनर, डाइनर, इनके नाम ही अजीब अजीब होते। चलो, टियोडाइनर, इन्होंने क्या किया था? 1917 में इसको डिस्कवर किया एज अ सब वायरल पैथोजन। एज अ व्हाट? एज अ सब वायरल पैथोजन। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? इसके पास क्या नहीं है? इसके पास कैप्सिड नहीं है, आरएनए। लेकिन दे आर आल्सो नोन एज अ इन्फेक्शियस फॉर अ प्लांट। जो वायरॉइड्स है क्या कॉज करते हैं? प्लांट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ह्यूमंस को कोई इससे लेना देना नहीं है, ओके। दे आर 100 times, दे आर 100 times smaller than viruses, ठीक है। एग्जांपल्स क्या रहेंगे इनके? पोटैटो, स्पिंडल, देखो ओनली प्लांट में होता है ना, तो पोटैटो, स्पिंडल, ट्यूबर कॉस बाय वायरॉइड। सो पोटैटो, स्पिंडल, ट्यूबर जो है वायरॉइड से होता है, ओके। देन वी हैव अ विरियन। विरियंस क्या? एन इंटैक्ट इनर कंप्लीट वायरस। इंटैक्ट, ये इंटैक्ट भी है, इनर भी है, कंप्लीट भी है। कंप्लीट वायरस, बट प्रॉब्लम क्या है? कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग द होस्ट
कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग होस्ट। इन्फेक्टिंग क्या करेगा, होस्ट को करेगा। इन्फेक्टिंग होस्ट लाइंग आउटसाइड द होस्ट से, लाइंग आउटसाइड होस्ट मतलब होस्ट है उसके बाहर से उसको इन्फेक्ट कर सकता है। ओके, होस्ट सेल इन अ सेल फ्री इन्वायरमेंट। सर फिर से पढ़ो, चलो पढ़ते। क्या है पढ़ते, मतलब मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। एन इंटैक्ट इनर्ट कंप्लीट वायरस। इंटैक्ट है, कंप्लीट वायरस है। ओके, वायरस का ही पार्ट है, पार्टिकल, वायरस का पार्टिकल है। ओके, वायरस का पार्टिकल है जो बाहर रह के इन्फेक्ट करता है। ओके, उसको बोलेंगे वायरिया। देन वी हैव अ वायरुसॉइड्स। वायरुसॉइड्स भी, वायरुसॉइड्स क्या है, ठीक है, वायरुसॉइड्स क्या है। दिस आर अ लाइक वायरस, ये क्या है, लाइक वायरस की तरह, वायरस की तरह। ठीक है, ये वायरियो, सॉरी एक सेकेंड, डोंट गेट कंफ्यूज। देखो ये छोटे छोटे वर्ड्स है, ये वायरॉइड्स की तरह, ये ऊपर की तरह, ये ऊपर से आया। ये लाइक वायरॉइड्स है ये, बट लोकेटेड इनसाइड द प्रोटीन, बट लोकेटेड साइड प्रोटीन कोड। क्या है, प्रोटीन कोड के अंदर है ये। ओके, सो इसको क्या बोलेंगे, थ्रू वायरस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थ्रू वायरस बोलेंगे। ठीक है, वायरसॉइड आरएनए कैन बी सर्कुलर इन, अगर इसके पास आरएनए रहेगा तो ये क्या रहेगा, सर्कुलर रहेगा। ओके, और क्या हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। दिस आर नॉन इन्फेक्शियस, ये क्या है, नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस, बट दे आर रेप्लिकेट ओनली इन देयर होस्ट, बट replicate only strictly in host cell, replicate in only host cell. This is important. And we have another thing, that is prions. क्या है हमारे पास, prions, prions, और उसको क्या बोलते हैं, स्लो वायरस। ठीक है, क्यों स्लो वायरस बोलते हैं, लेट्स स्टडी। द prions आर द स्मॉलेस्ट, ये क्या है, स्मॉलेस्ट, ये क्या है, स्मॉलेस्ट प्रोटीनिशियस, ओनली प्रोटीन है, क्या इनके पास ओनली प्रोटीन इज प्रेजेंट। ठीक है, infectious particles, can I say that they are proteinaceous infectious particle, can I say that they are proteinaceous infectious particle, that is disease causing agent। ये क्या करेंगे, they are disease causing agents। ठीक है, they are called disease causing agent from one animal to another, from one, or we can say animal to animal। प्रायन से एक डिसीज होता है, दैट इज कॉल्ड मैड काउ, मैड काउ। ओके, ये एनिमल में होता है। वही प्रायन से एक डिसीज होता है, सीजेके, दैट इज इन ह्यूमंस। ठीक है, दिस आर दी थिंग। सो हियर वी completed the biological classification in detail. I hope you understood this in a proper way. Sure. Thank you for paying attention. So here we cover all the biological